morning, students. Good morning, ma'am. Okay, so let's start our today's class. What we have seen yesterday. हमने कल क्या देखा था? Medication administration. Medication administration. We have started new chapter. That is medication administration. उसमें हमने क्या देखा था? क्या complete किया था? Measurement system, conversion, Okay. metric system, And we have also learned one new formula. Okay, so let's do a quick revision of our previous class. Okay. So we have started new chapter, that is medication administration and IV therapy. The priority concept for these chapters are clinical what are the judgment, clinical judgment and safety of the patient. Yes. So medication administration. Medication administration means we are giving medication to the patient using various types of electronic infusion devices and other things. So that is called as medication administration. When you are doing medication administration, what key points you have to keep in your mind? Just list it out, everyone. एक point बोलो चलो. जो हमने टेबल देखा था बॉक्स 14.1. medication prescription हो एना first process करना. Yes, we have to first assess the medication prescription, then Reconciliation, medication reconciliation is also important. What is that? What is medication reconciliation? compare previous taking medication की कोई repeat नहीं करना. Yes, we have to compare the patient's own medication or previous medication and new prescribed medication. So whether there is any repetition of any medication, so we have to do the medication reconciliation. Then other students, what are other Ask the client about allergy and use of herbal substance. Yes, we have to ask the patient, or we have to take the history related to any allergies or use of any herbal substances. Then Teach the client about medication and purpose of medication. yes, Then right of मतलब right of we have to medication. follow. Yes, we have to follow the patient's rights of medication. There are different rights. Which are what are that rights? Right dose, right patient, right route, right Right frequency, medication. Right circumstances also. Right documents. Right evaluation. Right Right documentation. Yes. technique. Right to educate. Right to refuse. Yes. Right to refuse. Right assessment. Right assessment. Okay, so you have to follow all these rights. There are certain more rights जो patient को नहीं पता होंगे. So you have to tell the patient about their rights. वो कौन से rights थे? Right to know whether this therapy is a part of research study or not. ये जो पेशेंट को मेडिकेशन दी जा रही है या जो भी है, तो वो रिसर्च पर्पस से दी जा रही है कि नहीं, वो भी पता ना होगा. इफ इट इज फॉर द रिसर्च पर्पस, देन राइट फॉर रिटन कंसर्न. ये पेशेंट को रिटन कंसर्न देने की उस मतलब नेसेसरी है. वो पेशेंट अगर बोले कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च स्टडी, और वो रिटन कंसर्न नहीं दे, तो वी कैन नॉट गिव सच काइंड ऑफ मेडिकेशन टू द पेशेंट. सो रिटन कंसर्न भी होना चाहिए. along with medication therapy, supportive therapy भी उसको मिलनी चाहिए. Then what other things you will do? Food interaction ना चाहिए. Okay, yes. assess vital signs, laboratory validation. Yes, we have to assess the vital signs before, during and after medication administration. Also there are certain kinds of medication. पहले आप चेक करोगे, फिर medications दोगे. During that medication आप चेक करोगे, और after
30 minutes 1 hour भी आप चेक करोगे. So you have to assess vital signs, lab values. You have to check any food interaction or medication interactions. Then at last, Document yes, we have to response. document. Yes, we have to document all these things. आपने कौन से medications दी, कैसे दी, सब आपको medication administration related document करना होगा. लास्ट में patient का response कैसा था, like positive, negative, क्या response था वो भी लिखना होगा. One important thing that you forgot, that is so important while giving any medication to any patient. Address concern. Identify and concern. Address concern, social, cultural, and religious. Yes, Ritual. we have to always keep their cultural, social, religious, and spiritual concerns in our mind before giving any medications. So don't forget this. This is very important in NCLEX. Okay. Next, medication measurements. So how many systems are there total? Two system. Two systems. Metric Which are they? system. Metric and apotheric or मतलब house. Apothecary. Yes, House. metric and apothecary and household system. Hospitals में कौन सी ज्यादा यूज होती है? Metric system. Metric मैट्रिक system. सिस्टम. हाउसहोल्ड यूज होती है हॉस्पिटल सिस्टम, हॉस्पिटल सेटिंग्स में, क्लिनिकल सेटिंग्स में? No. नो, No. बट देयर आर सर्टेन मेजरमेंट्स जो क्लिनिकल सेटिंग्स में कई बार रेयरली यूज हो जाती है फ्रॉम द हाउसहोल्ड सिस्टम. मैट्रिक सिस्टम में कौन सी मतलब यूनिट्स आएंगे? Meter, liter, and gram. मीटर, लीटर एंड ग्राम. सो उसके भी सब कंपोनेंट्स आ जाएंगे. मिलीलीटर, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, किलोग्राम, मिली इक्विवेलेंट, वो सब उसमें ही आ जाएगा. यू हैव टू रिमेंबर देयर एब्रिविएशंस. डोंट गेट कंफ्यूज इन एमजी एंड एमसीजी, एमईक्यू. सो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना. एपोथेकेरी जो सिस्टम है और हाउस होल्ड सिस्टम्स जो है उसमें ग्रेन, ग्राम और मिनिम आते हैं. बहुत वो कभी भी यूज नहीं होते. बट जो यूज होते हैं, जो कॉमनली समटाइम्स यूज हो जाते हैं, दैट इज ड्रॉप, टी स्पून, टेबल स्पून, आउंस, पाइंट एंड कप. What are the measurements for tablespoon? Tablespoon means 15 ml. 15 ml. 15 ml. What is ounce? 13 30 ml. 30 30 ml. ml. And what about teaspoon? 5 5 ml. 5 ml. What is the important grade point? Important grade point क्या है? इन एंक्लेक्स एग्जामिनेशन आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे. Apothecary name. कैसे क्वेश्चंस नहीं होंगे? ट्रेड नेम नहीं होंगे. Metric को convert करना. कन्वर्जन, दोनों अलग अलग सिस्टम का कन्वर्जन कभी भी वो लोग आपको नहीं पूछेंगे. लाइक वी हैव डोंट, दे विल नॉट आस्क यू टू कन्वर्ट एनी यूनिट फ्रॉम द एपोथेकेरी और हाउस होल्ड सिस्टम टू इनटू द मैट्रिक सिस्टम. दे विल ओनली आस्क कन्वर्जन इन बिटवीन द सिस्टम. मैट्रिक का ही अंदर अंदर आपको पूछेंगे. दो सिस्टम अलग अलग का कन्वर्जन कभी नहीं आपको पूछेंगे. बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज समटाइम्स in hospital setting it happens that doctor will give you or prescribe you to give 1 drop or 1 teaspoon, 1 tablespoon, 1 ounce. So you have to just remember what are the measurements for this. Other medication measurement units are which are Unit. milli equivalent and units. Yes, यूनिट जब हम देते हैं कि इतने यूनिट देना है, 4 यूनिट, 5 यूनिट, सो व्हाट इज दैट? इज इट देयर वेट? सो व्हाट इज दैट? Effectiveness, power. Effectiveness, yes, their power, their action. 4 unit in comparison to 2 unit is more powerful. It has more action. So it is always measured in terms of action, not in terms of weight. So it is like unit. Give me the common examples in which we are using unit measurement. Penicillin, Enoxaparin, insulin. Yes, heparin, sodium, that is enoxaparin, insulin. All this in these medications we are using units, not ml. Okay, then we have seen conversions. Tell me about conversions.
what we have seen in this? Large to smaller and smaller to large. Yes, large to small. We have completed large to small conversion. Large to small. So in that, what you will do? Multiply by Multiply 1000 by 1. Multiply by 1000 or or go 3 decimal point right to left. 0.3 places to 3, the right. yes, 3 decimal point towards the right side. What about small to large? Divided by 1000. Divide by 1000 or Move Decimal 3 decimal point towards left. yes, move 3 decimal point towards the left side. Okay, so this is you have to remember. Then conversion between the systems. Yes, we know that in examination they will not ask you the conversion in between the system, but it you should understand जो commonly use होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. कभी भी आप calculation of dosages करते हो या फिर कोई भी equation आप solve करते हो तो first step क्या होना चाहिए always? The red important conversion. point, conversion. Yes, जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो सारे यूनिट्स एक ही यूनिट में होने चाहिए. लाइक इफ इट इज इन ग्राम सो सब ग्राम में ही होना चाहिए. इफ इट इज इन एमसीजी तो सब एमसीजी में ही होना चाहिए. अदर यूनिट्स में होंगे सो यू विल फेस प्रॉब्लम. सो पहले आपको कन्वर्जन करना होगा, देन यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. देन व्हाट अबाउट मेडिकेशन लेबल्स? Generic name हो जाएगा. Yes, you have to remember all the medications through their generic names. कभी भी आप कोई भी मेडिकेशन लोगे तो उसके ऊपर जेनेरिक नेम भी लिखा होगा और ट्रेड नेम भी लिखा होगा. Then what other thing you have to check while you are checking the medication label? जब आप पूरा लेबल पढ़ते हो मेडिकेशंस का तो और क्या चेक करते हो? Expiration date of एक्सपिरेशन डेट. यस, medication. एक्सपायरी डेट हमें चेक करनी होती है कि when it is getting expired. What is the red important point about examination? Generic name જ આપે. Trade name Generic. નથી. In exam, you will be only asked the questions using generic name. आपको एग्जाम में कोई भी फार्माकोलॉजिकल क्वेश्चन होगा, कोई ऐसे कोई सिस्टम में होगा कि पेशेंट ये मेडिसिन ले रहा है, ये मेडिसिन ले रहा है, तो उसमें जेनेरिक नेम्स ही लिखे होंगे. सो रिमेंबर द जेनेरिक नेम. ट्रेड नेम याद नहीं रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उसमें आपको जेनेरिक नेम से ही पूछेंगे. बट व्हेन यू आर इन क्लिनिकल सेटिंग, जब आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जेनेरिक नेम की जो मेडिकेशन है उसका ट्रेड नेम ये है. शायद डॉक्टर बोले कि ऑन्डेंसेट्रॉन लेके आओ तो आपको ढूंढना नहीं पड़े कि विच एम्प्यूल इज ऑन्डेंसेट्रॉन. आपको पता होना चाहिए कि एमिसेट इज द ऑन्डेंसेट्रॉन. और डॉक्टर शायद ऐसा बोले कि एमिसेट लेके आओ तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि एमिसेट इज इटसेल्फ ऑन्डेंसेट्रॉन. सबको दोनों पता होना चाहिए इन हॉस्पिटल सेटिंग. पर एग्जाम में आपको ट्रेड नेम से नहीं पूछेंगे, वो आपको जेनेरिक नेम से ही पूछेंगे. सो रिमेंबर द जेनेरिक नेम्स ओनली फॉर एग्जामिनेशन. Then we have seen one formula. क्या था वो formula? X is equals to, H upon sorry, D. T. T upon H. T divided upon, H multiply by B. okay, what is D? Prescribed dose. Desired value. What is that? Desired value means? Prescribe જે કર્યો હોય ને Doctor dose. prescribe કર્યું હોય. Yes. जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है that is called as desired value. What is H? On hand value. Yes, on hand. उसका मतलब क्या? जो हमारे पास अवेलेबल होता है वो. Yes, जो भी टैबलेट, जो भी वायल, जो भी एम्प्यूल, जो भी सिरप हमारे हाथ में है उसमें क्या वैल्यू दी गई है, that is called as H value और on hand value. What is V? What is Types of V? tablet માં છે કે liquid માં છે કે Yes, types Volume. of the form. Vehicle कौन से फॉर्म में है? We cannot see the MCG. आपके पास शायद सिरप फॉर्म में होगी तो आपको MCGs और MG वो दिखेंगे, आपको सिर्फ सिरप दिखेगी, आपको ml में दिखेगा कि इतना ml है. टैबलेट्स फॉर्म में होगी, कैप्सूल फॉर्म में होगी, सो आपको वो ही दिखेगा.
सो जो व्हीकल जिस फॉर्म में हम पेशेंट को देते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हीकल. It can be in ml, tablet, capsules. Okay, so we have solved this problem. Now let's solve another problem. You have to solve this problem. A nurse prepares to administer cephalosporin intravenously to a 9-month-old patient who weighs 22 pounds. The vial reads 4 mg per ml and the prescription is for 4 mg per kg every 8 hours. Q 8 hours is every 8 hours. You have to understand. जब आपको ऐसे एग्जाम में प्रिस्क्रिप्शन दिए गए हो तो डोंट गेट कंफ्यूज. इसको कैसे पढ़ना है? 6 mg पर kg डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एवरी 8 आवर्स. सो आपको हर 8 घंटे में इतना डोज देना है. सो नर्स कितने ml निकालेगी? चलो सॉल्व करो ये प्रॉब्लम. व्हाट विल द फर्स्ट स्टेप? आप फर्स्ट क्या करोगे? व्हाट इज द डिजायर्ड डोज? फर्स्ट टेल मी. डिजायर्ड डोज क्या है? डी क्या है? 4 mg per ml. No, 6 No, mg 6 per mg kg. per 6 6 mg per mg per kg. So it should be 6 mg per kg per ml. पर बेबी का वेट तो हमें पाउंड में दिया है. सो व्हाट यू विल डू? convert करवाना converting पाउंड to में You kg have to में. convert. Yes. फिर कन्वर्ट करके अगर हम इस पाउंड को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें टोटल वेट मिलेगा. पर डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला कि इतने वेट के लिए. डॉक्टर ने तो 6 mg 1 किलो के लिए बोला है. सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा आपको? फॉर जो भी XYZ केजी आए तो उसके लिए कितना mg निकालना है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, ढूंढना होगा. देन जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी अवर डिजायर्ड डोज. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Mhm. Yes. So solve this question. You have 2 minutes to solve this question. चलो solve करो. Done. हो गया सॉल्व? Its answer is 15 ml. Okay. So your answer is 15 ml. Another answers? किसी और ने सॉल्व किया है? दूसरे कोई किसी का आंसर? Any other answers? चलो. 15 ml. Okay.
ये मारो आंसर 12.1 ml. 12.1 ml. Okay, any other answers? There are total 17 students. 15 students का आंसर क्या है? चलो बोलो 15 ml 12.1 या उससे कोई अलग आंसर आया है किसी का? 15 ml. 15 ml. Okay, so let's solve. First of all, tell me the desired value. Desired value क्या होगी? उसके लिए हमें पहले convert करना होगा. So we know 1 kg is equals to how much pound? 2.2. 2.2 pound. So it is given 22 pound. So 22 pound would be how much kg? So we have to multiply 22 into 1 divided by 2.2. So what will be our answer? 10 kg. 10 kg. 10 kg, yes. So 10 kg, बेबी का वेट है 10 kg. अभी डॉक्टर ने बोला है 6 mg for 1 kg. So 10 kg के लिए बेबी 10 kg के बेबी के लिए कितना mg होगा? So 10 multiply by 6 divide by 1. So what will be the answer? 60. 60 mg. So हमें desired dose मिल गया. So desired dose is 60 mg. On hand हमारे पास कितना है? mg में है? Yes. Yes. So on hand कितना है हमारे पास? 4. 4 mg. और vehicle क्या है? 1 ml. 1 ml. Yes. So this 60 divided by 4 कितना होगा? 15. 15. Yes. So 15 ml would be the correct answer. Got it, Anisha? Where you have done mistake? आपको पता चला आपने कहाँ मिस्टेक की? हाँ मैम, मैं क्यों करूँ कि जे 22 पाउंड છે ને એના કિલોમાં કન્વર્ટ કરવા મતલબ 2.2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરો. Okay, so remember 1 kg is equals to 2.2 pound. अगर आपको याद ना रहे तो ऐसे करके करो. 1 kg is equals to 2.2 pound. So this much pound is equals to how much kg? So cross multiplication तो already हमने जब हम छोटे थे तभी किया था, तो that would be easier for you. Sure. Okay. Yeah. Okay. So next is solve another question. चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो. A nurse prepares to administer her patient's maintenance dose of nifedipine orally. आपने देखा होगा तो आपको सही सब जगह पर ऐसे जेनेरिक नेम्स दिए हैं. सो आपको एग्जाम में भी ऐसा ही होगा. The nurse prepares to administer her patient's maintenance dose of nifedipine orally. The dose is 0.07 mg per kg per day. The medication label reads 0.5 mg per 2 ml. The client weighs 66 pounds. The provider writes the order as TID. The nurse draws up blank ml for each dose. पता चला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन करूं? नर्स एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है. सो नर्स जो है उसको निफेडिपिन मेंटेनेंस डोज देना है. हर रोज उसको लेना ही है. सो कितना डोज है? डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है? सो हर रोज एक दिन का 0.07 mg पर kg जाना चाहिए इन अ डे. मेडिकेशन जो है वो कितनी है निफेडिपिन की? सो 0.5 mg पर 2 ml. हर 2 ml में 0.5 mg मेडिकेशन जाएगी पेशेंट को. पेशेंट का वेट है 66 पाउंड और प्रोवाइडर जो हेल्थ केयर पीएससीपी है उन्होंने बोला है कि टीआईडी. व्हाट इज टीआईडी? Thrice in a day. थ्राइस इन अ डे. यस, दिन में 3 बार पेशेंट को मेडिसिन देनी है. सो नर्स ड्रॉज अप हाउ मच ml, कितने ml नर्स मेडिकेशन निकालेगी फॉर ईच डोज. सो कैन विल यू कैलकुलेट द टोटल डोज इन अ डे कि एक डोज कैलकुलेट करोगे? Each dose. एक. हाँ, एक डोज कैलकुलेट करना है, पूरे दिन का नहीं. अगर फॉर अ डे बोला होता तो आपको तीनों डोज कैलकुलेट करके लिखना होता आंसर. बट पीछे लिखा है कि ईच डोज. सो 3 बार देने हैं. सो एक डोज कितने ml, एक डोज के लिए नर्स कितने ml निकालेगी? सो व्हाट विल द फर्स्ट स्टेप? डिजायर्ड डोज. हमें फॉर्मूला लिखना है x इज इक्वल्स टू d बाय h इंटू v. सो व्हाट इज अवर डिजायर्ड डोज वो हमें पता नहीं है. डॉक्टर ने तो सिर्फ ऐसे लिखा है. सो उसके लिए फर्स्ट स्टेप को क्या करना होगा? Convert करूँ परसेंट पाउंड ने kg. Yes, we have to first convert the weight. Then
वेट कन्वर्ट करने के बाद वो आपको केजी में मिलेगा, पर यहाँ पर तो 1 केजी के लिए दिया है, सो वी हैव टू अगेन मल्टीप्लाई टोटल केजी जो भी पेशेंट का आएगा उससे ये मल्टीप्लाई करना होगा। सो दैट वुड बी ऑफ होल डे का आंसर आएगा। फिर आपको एच की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, सो लास्ट में जो आपको आंसर मिलेगा उसको डिवाइड बाय 3 करना होगा, बिकॉज वो आपको टोटल डोज मिलेगा, एक दिन का पूरा मिलेगा। पर यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि एक डोज के लिए कितना जाएगा। सो सॉल्व दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन हो जाए तो मुझे आंसर बोलना, व्हाट इज योर आंसर। My answer is 5.6. 5.6 ml. Yes. Okay. Other students? चलो 2.8. Maru 3 ml. 3 ml. Then another someone has said 2.8. 2.8 ml. Okay. 2.8 ml. 2.8 ml. Okay. 2.8. Okay. 2.8. 2.8. Okay. 2.8. Majority of students are getting 2.8. Okay. So let's solve this problem. First, we have to do the conversion. We know because we don't have, right now we don't have desired value. So for conversion, we know 1 kg is equals to 2.2. 2.2 pound. So for 66 pound, how much kg would be there? So 66 into 1 divided by 2.2. So what is our answer? 30 30. kg. 30 kg. Okay. Yes. Here it is written 0.07 mg for 1 kg.
but our patient's weight is 30 kg. So for 30 kg, how much medication will require? So 30 multiplied by 0.07 divide by 1. So what is answer for this? 2.1 mg. 2.1 mg. So is it for 1 day or 1 dose? One dose. 1 day. one day, because it 1 reads, day. हमने तो इतना ही सॉल्व किया, बात का अभी पीछे का पर डे तो बाकी है, पर we have to get आंसर फॉर ईच डोज. सो हम क्या करेंगे, एक दिन का पूरा इतना डोज जाना चाहिए. डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि पूरे दिन में आपको 3 बार मेडिसिन देनी हो और पूरे दिन में 2.1 mg जाना चाहिए पेशेंट को. सो वी हैव टू डिवाइड इनटू 3 डोजेस. सो हम 2.1 डिवाइड बाय 3 करेंगे. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? 0.7. कितना? 0.7. 0.7. यस, फॉर ईच डोज. एक डोज के लिए नर्स 0.7 देगी तो पूरे दिन का 2.1 mg हो जाएगा. सो हमारी डिजायर्ड वैल्यू क्या हुई? 0.7 mg. ओके. मेडिकेशन लेबल में कितनी लिखी है? 0.5 mg. ओके. मल्टीप्लाई बाय व्हीकल क्या लिखोगे आप? 2. 30 kg. 2. यस, 2 Okay. ml, बिकॉज हर 2 ml में इतनी मेडिकेशन है. सो mg विल गेट कट. 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 ml डिवाइड बाय 0.5 कितना होगा? 2.8 ml. So the correct answer is 2.8 ml. जो लोगों का 5.6 आया है, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2.8. 2.8 का डबल डोज हो जाएगा 5.6. सो आई माइट थिंक कि आपने वो डोज में मिस्टेक कर दी. पूरा जो डोज था पूरे दिन का. यस. सो एक बार नर्स ईच डोज के लिए 2.8 ml निकालेगी. तो पूरे दिन का अगर निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो पूरे दिन में कितने ml निकालना होगा पेशेंट नर्स को? 8.4. अगर पूरे दिन का हो तो कितना होगा? 8.4. 8.4. यस. तो पूरे दिन में 8.4 ml निफेडिपिन ओरली देना होगा. पर हमें पूछा था एक डोज के लिए कितना ml निकालना है. सो दैट वुड बी 2.8. अंडरस्टूड? जो लोगों का 5.6 और 3 आंसर आया है, 3 आंसर के लिए आपने सम अप कर दिया था, होल नंबर लिख लिया था. हाँ यस मैम. हाँ. सो जब भी आपको एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं दिया गया हो कि राइट इन अ होल नंबर, राइट इन अ 1 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट, तो जो भी फिगर में आपका आंसर आया है उसी को लिखना है. अंडरस्टूड? अगर इट इज मेंशन कि राइट इन अ होल नंबर, तभी आपको सम अप करना है और होल नंबर में लिखना है. अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, नॉट इवन होल नंबर की राइट 1 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट, तो जो भी आपका आंसर आया है वही लिखना है. ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में पूछे जाते हैं. समटाइम्स दे विल गिव यू ऑप्शंस. आपको ऑप्शंस फॉर्म में भी देंगे और समटाइम्स ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे. यू हैव टू सिंपली राइट डाउन योर ऑप्शंस. जो भी आपका आंसर है वो आपको लिखना ही होगा. सो रिमेंबर, मेन एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ह्यूमन तब आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. समटाइम्स दे विल गिव यू ऑप्शंस. तो ऑप्शंस तो जो भी होगा आपको वही सिलेक्ट करना होगा. ऑप्शन में सिर्फ 3 हो, 2.8 दिया ही ना हो, सो आप यू विल सिलेक्ट 3. तो 2.8 दिया गया हो तो 2.8 ही सिलेक्ट करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना हो तो 2.8 ही लिखना है. अंडरस्टूड? યસ મેમ. यस. મેડમ અહીં કેજી ને બી એમએલ માં ફેરવાનું હતું ને? કેજી ને કેમ ml માં? ના, કેજી નું ml માં કેવી રીતે કન્વર્ટ થાય? કેજી ઇઝ ફોર weight and ml is for ઓકે, fluid. સોરી. That cannot be possible. સોરી. Okay, no worries. So this is the answer for answer 1. So first we have to divide 22 pound by 2.2. So 10 kg is answer, and 6 mg into 10 kg. 6 mg per kg था तो हमारा kg था 10 kg. So total 60 mg. So on hand there is 4 mg, vehicle is 1 ml. This is desired dose. You can see this is desired dose is 60 mg, on hand H is 4 mg and vehicle is 1 ml. So when you are putting this value in formula, you will get 15 ml answer. Next, second solution.
66 pound divide by 22, so 30 kg is answer. Desired value is 0.07 mg for 1 kg, so we will multiply by 30 kg, so 2.1 mg per day. एक दिन का हमें आंसर मिला था, because the formula was saying mg per kg per day. So ये जो आंसर मिला वो for per day का था, so हमें वो TID लिखा था, so हमें वो 3 डोजेज में डिवाइड करना होगा. So for 1 dose this is our desired value. और ऑन हैंड 0.5 थी, व्हीकल 2 ml था, तो जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे तो 2.8 ml हमारा आंसर आ जाएगा फॉर ईच डोज. पूरे दिन का होता, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया होता लास्ट में फॉर ईच डोज, सिंपली ऐसा लिखा होगा कि हाउ मच ml द नर्स विल ड्रॉ. तो आपको ये जो स्टेप था वो स्किप कर देना था, क्योंकि हमें टोटल ही फाइंड आउट करना था. एक डोज का तो फाइंड करना ही नहीं था, तो डिवाइड बाय 3 वाला जो स्टेप था वी कैन स्किप दैट स्टेप. अंडरस्टूड? Yes or no? Yes, ma'am. ma'am. Okay. So let's move next. Next is medication prescription. We know जब भी पेशेंट को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन में क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए? What should be mentioned in the prescription? Route, yes. Patient's name, dose, yes. Dose, frequency, Medication name, frequency भी लिखी होनी चाहिए. Then date, yes. Date and time दोनों. prescriber sign, प्रिस्क्राइबर साइन, जिसने भी प्रिस्क्राइब किया है उसकी साइन होनी चाहिए. सो लेट्स सी बॉक्स 14.6 कि मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए. तो नेम ऑफ द क्लाइंट होना चाहिए, फुल नेम होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि एक क्लाइंट के मतलब 2 क्लाइंट के सेम नेम हो, तो पेशेंट पर्सन विल गेट कंफ्यूज. तो पूरा नेम होना चाहिए. डेट एंड टाइम व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन, कि आपने कब लिखा है प्रिस्क्रिप्शन. नेम ऑफ द मेडिकेशन, कौन सी मेडिकेशन आपको देनी है वो उसका नेम होगा. उसका डोजेज होगा मेडिकेशन का, कि इतना डोज देना है. मेडिकेशन रूट होगा. फॉर एग्जांपल हमने अभी आगे ही देखा कि निफेडिपिन, सो डॉक्टर ऐसा लिखेंगे निफेडिपिन 4 mg पर ओरली TID. सो मेडिकेशन का नेम आ गया, उसका डोजेज आ गया, उसका रूट आ गया और उसकी फ्रीक्वेंसी, सब चीज आ गई. So name of the medication, dose of the medication, route of the medication, time and frequency of the medication. Sometimes they will write only frequency, and sometimes they will write like this. TID hai, so in morning 6, in afternoon 2, and in evening 10. So this is how they will write. So time and frequency 6 AM, 2 PM, 10 PM. So this is how they used to write. आपने देखा ही होगा. और लास्ट में सिग्नेचर of a person writing the prescription, जिसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसकी लास्ट में सिग्नेचर होगी. So in a medication prescription the name of a medication is written first. पहले ही ऑलवेज मेडिकेशन का नेम ही आता है. आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि पहले ड्रग डोज ऐसे डोज रूट और लिखा होगा, लास्ट में लिखा होगा निफेडिपिन? इट इज नॉट लाइक दैट. फर्स्ट यू हैव टू राइट द मेडिकेशन नेम फॉलोड बाय द डोजेज. आपको पता होगा मैंने कैसे लिखा था, निफेडिपिन 4 mg पर ओरल TID. So that is the correct sequence. ऐसे ही लिखा होना चाहिए. So first the medication name, then dose, then route, and then frequency. Depending on the frequency of the prescription, times of administration are usually established by healthcare agency and written in an agency policy. Yes, it should be written like this. अभी जो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, कोई मेडिकेशन BD में होगी तो आपको पता होगा कि मॉर्निंग 6 इवनिंग 6 होगी. TID होगी तो एजेंसी फॉलो, जो हॉस्पिटल है उसकी पॉलिसी होती है कि सारी मेडिकेशन, जो मॉर्निंग मेडिकेशन है वो 6 बजे देनी है, जो आफ्टर लंच मेडिकेशन है वो 2 बजे देनी है, जो आफ्टर डिनर मेडिकेशन वो 10 बजे देनी है. तो उन लोगों ने एक ऐसे पॉलिसी बनाई होती है. तो सारे PSCP ऐसे ही लिखेंगे. BD होगी तो 6-6 लिखेंगे, 8-8 लिखेंगे, 10-10 लिखेंगे. अगर आफ्टर ब्रेकफास्ट होगी तो, बिफोर ब्रेकफास्ट होगी तो 6-6 होगा या 8-8 होगा. सो हर हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है, वैसे ही वो PSCP प्रिस्क्राइब करेगा मेडिकेशन. Medication prescriptions need to be written using accepted abbreviations, acronyms, and symbols approved by the Joint Commission. Also follow agency guidelines. Yes, हमें पता है कि TID ऐसे ही लिखना है. We cannot write in our terminologies. जो भी accepted abbreviations है, acronyms है, per oral, ऐसे IV, तो ऐसे ही लिखना है.
खुद से जनरेट किए हुए हमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने हैं, जो एक्सेप्टेड एब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स और सिंबल्स जो जॉइंट कमीशन लोगों ने पब्लिश किए हैं कि ये आपको फॉलो करने हैं, सो वही आपको फॉलो करने हैं हर बार. The important point is, if the nurse has any question about or sees inconsistencies in the written prescription, the nurse must contact the person who wrote the prescription immediately and must verify the prescription. This is very important. अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में हो या आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा डोज हम दे ही नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट की हार्ट रेट होगी कम और डॉक्टर ने डिजॉक्सिन, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द थेराप्यूटिक वैल्यू फॉर डिजॉक्सिन? डिजॉक्सिन की थेराप्यूटिक वैल्यू क्या थी? What is the therapeutic value for digoxin? 0.5 to 2. 5 to 2. 0.5 to 2, sure? 0.7 to 2. No, it is not 0.7. 0.8 0.5 to to 2. What is the therapeutic value for digoxin? 0.8 2. शायद 0.82. 0.82 what? 2. 2. So this is the therapeutic value of digoxin. अगर पेशेंट की लैब टेस्ट आपने की है, उसमें डिजॉक्सिन की वैल्यू ज्यादा आई, फिर भी डॉक्टर ने ऐसे प्रिस्क्राइब कर लिया है, सो दैट इज समथिंग रॉन्ग. आपको पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. सो एट दैट टाइम यू विल नॉट गिव द मेडिकेशन टू द पेशेंट. फर्स्ट आपको वो जिसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसको ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी. यू हैव टू कंफर्म कि सर दिस इज द प्रॉब्लम. अगर उसने कुछ रॉन्ग लिख लिया हो, कोई मेडिकेशन ऐसी हो कि सिर्फ ओरली दी जा सकती है, आईवीआईएम नहीं दी सकती, और उन लोगों ने आईवीआईएम लिख दिया है, सो दिस इज समथिंग रॉन्ग, दे हैव मेड सम मिस्टेक. सो ऐसे टाइम पे आपको विथहोल्ड करना है, मेडिकेशंस नहीं देनी है पेशेंट को. पहले वो पीएससीपी को कांटेक्ट करना है, जिसने भी मेडिकेशंस लिखी है इमीडिएटली कांटेक्ट करो. इफ इट इज नॉट, ही इज नॉट अवेलेबल, जिसने मेडिकेशंस लिखी है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? सुपरवाइजर ने इन्फॉर्म करा. Yes, we have to inform the supervisor. Don't blindly give the medications कि हाँ मुझे पता है कि रॉन्ग है पर मुझे राइट भी पता है तो मैं दे दूं, ऐसा नहीं करना है. आपको प्रिस्क्रिप्शन में कुछ रॉन्ग दिखे, आपको कुछ दिखाई ना दे, मतलब वो लेजिबल नहीं हो, जिसने भी लिखा है वो ऐसे हम पढ़ नहीं सके, गंदे राइटिंग्स में हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी मेडिकेशन लिखी है, और समथिंग इज रॉन्ग, then we have to withhold the administration. We have to contact the PSCP who has written the prescription immediately. If he or she is not available, then we have to contact the supervisor, nursing supervisor, और then वो जो भी हमें ऑर्डर दे कि वेट करो या ये दे दो वो दे दो, जो भी हमें ऑर्डर दे वो फॉलो करना है, बट डोंट गिव मेडिकेशंस टू द पेशेंट. अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वो लोग आपको ड्रग डोज कैलकुलेशंस नहीं पूछेंगे, बट ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस, सिचुएशंस देंगे कि यू आर अ नर्स, यू आर वर्किंग इन XYZ यूनिट, और डॉक्टर ने, पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ये मेडिसिन दे दी है, सो व्हाट यू विल डू. सो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज समथिंग रॉन्ग. समटाइम्स दे विल आस्क यू करेक्ट थिंग, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि सब कुछ करेक्ट हो तो आपको मेडिकेशंस देनी है, दैट इज द सिंपल. एंड इनकरेक्ट हो तो वी हैव टू विथहोल्ड द मेडिकेशन. सो ये आपको सिचुएशंस पता होनी चाहिए. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. Okay, so this is very important. Oral medications. Let's see what is oral medications. So scored tablets contain an intended mark to be used for possible breakage into partial doses when necessary. Scored tablets का मतलब क्या होता है कि जिस पर मार्क हो. Those marked for divisions can be divided into halves or quarters according to agency policy. आपने ऐसी टैबलेट्स देखी होगी जिन पर ऐसे ऊपर की तरफ एक मार्क होता है, ऐसे टैबलेट्स होती है ना. अगर टैबलेट होगी ऐसे तो
इफ इट इज इन सर्कल फॉर्म तो ऐसे मार्क होगी, इफ इट इज इन लार्ज फॉर्म तो ऐसे मार्क्स आपने देखे होंगे टैबलेट पर। सो उस टैबलेट्स को क्या बोलते हैं, स्कोर्ड टैबलेट्स। क्यों स्कोर्ड टैबलेट्स बोलते हैं, बिकॉज उस पर ऐसे मार्क किया जाता है। मार्क का मतलब क्या, कि वहीं पे ही, वहां से आपको हाफ में डिवाइड करनी है। जो स्कोर्ड टैबलेट्स होती है वो इजीली आप हाथ से भी तोड़ोगे तो टूट जाएगी, पर जो स्कोर्ड टैबलेट्स नहीं है वो इजीली नहीं टूटेगी। स्कोर टैबलेट्स बनाई ही इसीलिए गई है कि जब भी हाफ डोजेस की रिक्वायरमेंट हो, कि क्वार्टर डोजेस की रिक्वायरमेंट हो, तो आप इजीली उसको ब्रेक कर पाओ। तो जिस पर भी मार्क हो उस टैबलेट्स को क्या बोलेंगे, Core tablet. core tablets, yes. Next is enteric coated tablets. Enteric coated tablets or sustained release capsules delays the absorption until the medication reaches the small intestine. These medications would not be crushed. एंटेरिक कोटेड मेडिकेशंस मींस ये जो बड़ी बड़ी मेडिकेशंस आती है कैप्सूल्स फॉर्म में आती है, उसको एंटेरिक कोटेड मेडिकेशंस बोलेंगे। नाम ही है एंटेरिक। एंटेरिक रिफर्स टू, एंटेरिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू Intestine. इंटेस्टाइन, यस। सो ये मेडिकेशन ऐसी बनाई गई है कि आप जब मेडिकेशन लो, नॉर्मली मेडिकेशन स्टमक में ही डिसॉल्व हो जाती है, पर ये मेडिकेशन को इस तरह से बनाया गया है कि जब तक वो उसका ऊपर का लेयर ऐसे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो तब तक तो मेडिकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाए और उसकी एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो। ऐसी उसको ऐसे ही बनाया गया है कि उसकी जो डिजायर्ड एक्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एब्जॉर्ब हो, उससे पहले ना हो। सो ऐसी मेडिकेशन को आप क्रश करके दे पाओगे, उसको बनाया ही ऐसा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसको एब्जॉर्ब होना है, तो आप क्रश करके दे दोगे तो वो स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो जो डिजायर्ड इफेक्ट्स हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। सो एंटेरिक कोटेड जो टैबलेट्स होती है, जो सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स होती है, जब भी आप कोई भी मेडिसिन देखोगे तो उसके पीछे लिखा होगा कि दिस इज सस्टेन्ड रिलीज कैप्सूल्स। कैप्सूल्स बड़ी टैबलेट्स जो होती है वो, जो स्मॉल टैबलेट्स होती है वैसी ही दिखती है बट वो बड़ी होती है, दैट इज कॉल्ड एज सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स और एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स। नेक्स्ट इज ओनली कैप्सूल्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स और कैप्सूल्स। कैप्सूल्स मींस क्या, इट कंटेन्स अ पाउडर और ऑयली medication in a gelatin cover. Medications can be given in powder or gelatin form और whole as a whole और as a whole capsule। आपने देखा होगा कि ऐसी कैप्सूल्स आती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके अंदर ऐसे 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 छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में होते हैं या फिर पूरा जेल जैसा होता है। हैव यू सीन सच काइंड ऑफ मेडिकेशंस? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. सो वो मेडिकेशंस को क्या बोलेंगे, कैप्सूल्स बोलेंगे। अगर ऐसी बड़ी मेडिकेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, Enteric coated. एंटेरिक कोटेड मेडिकेशन और सस्टेन रिलीज मेडिकेशन। ये मेडिकेशन हम कभी भी क्रश नहीं कर सकते। पर जो कैप्सूल्स है जिसके अंदर पाउडर है और ऑयली मेडिकेशन अंदर है, सो अकॉर्डिंग टू नीड अगर हमें पेशेंट को देनी है, इट इज नॉट फॉर, ऐसे उसको नहीं बनाया गया कि वो इंटेस्टाइन में ही जाके एब्जॉर्ब हो और ऐसा कुछ हो, ऐसा उसका मीनिंग नहीं था। सो हम उसको खोल के भी लेस पाउडर फॉर्म और जिलेटिन फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर पूरी की पूरी कैप्सूल की फॉर्म में एज अ होल कैप्सूल भी दे सकते हैं। बट एंटेरिक कोटेड को ऑलवेज होल ही देना है, वी कैन नॉट क्रश द एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स। वो नॉर्मल कैप्सूल्स होती है जो ओपन करके हम पाउडर और जिलेटिन फॉर्म जो भी फॉर्म में है, सम कैप्सूल्स विल बी इन जेल फॉर्म, ऐसे स्क्वीज करोगे तो उसमें से जेल जैसा निकलेगा, और सम खोलोगे तो ऐसे अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स पाउडर वैसा होगा। सो हम दोनों फॉर्म में दे सकते हैं। अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटेरिक कोटेड एंड कैप्सूल? Yes, ma'am. Okay. Orally administered liquids are supplied in a solution form and contains a specific amount of medication in a given amount of solution as stated on the label. ये सारे oral forms हैं, normal tablets, scored tablets, enteric coated tablets, capsules और liquids. So जो oral liquids होते हैं वो एक solution form में होते हैं और उसमें लिखा होता है कि each amount of solution, इतने सॉल्यूशन में, लाइक 5 ml में कितने mg मेडिकेशन है, 1 ml में कितने mg मेडिकेशन है, 2 ml में कितने mg मेडिकेशन है। सो वो सब लेबल पर लिखा ही होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें जितना देना है पेशेंट को, अगर 5 ml में 10 mg मेडिकेशन है और पेशेंट को 20 mg डॉक्टर ने बोला है, सब 2
10 ml दोगे पेशेंट को, सो अकॉर्डिंग टू दैट हम पेशेंट को ml में डोज देंगे, पर वो लिखा ही होता है, वो जो भी बॉटल्स होती है ओरल लिक्विड्स की, उस पर लिखा ही होता है, लेबल किया ही होता है कि दिस मच ml कंटेन्स दिस मच डोज ऑफ द मेडिकेशन. अंडरस्टूड अबाउट ओरल मेडिकेशंस? Yes, गॉट ma'am. दिस पॉइंट? ओके. नेक्स्ट इज मेडिसिन कप. आपने देखा होगा कि कोई भी ओरल मेडिकेशन होती है तो उसके ऊपर कप होता है, ट्रांसपेरेंट कप होता है. वो क्यों होता है? मेजरमेंट करवा. For the measurement, yes. So the medicine cup has the capacity of 30 ml or 1 ounce. आपने कभी भी वैसे कप ओपन करके देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 15 ml के होते हैं या मैक्सिमम 30 ml के होते हैं, उससे बड़े कप नहीं आते. 30 ml के कौन से कप्स होंगे? जो पेशेंट लेक्सेटिव्स ले रहे हैं वो बड़े बड़े कप्स होते हैं. डूफालेक के और उसके कप्स होते हैं ना, वो 30 ml के होते हैं. जो छोटी छोटी बॉटल्स होती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 15 ml होती है, पर 30 ml से ज्यादा कभी भी आपने देखा है 40 ml का कप है, 50 ml का कप, इट इज नॉट पॉसिबल. मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी 30 ml है, तो 30 ml को हम 1 आउंस भी बोलते हैं. इट इज यूज्ड फॉर ओरली एडमिनिस्टर्ड लिक्विड्स. और वो कप्स क्यों यूज होते हैं? जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है हमें लिक्विड का, उसके लिए यूज होते हैं. हम रैंडमली ऐसे ही नहीं दे सकते मेडिकेशन. देयर मस्ट बी अ स्पेसिफिक मेजरमेंट. द मेडिसिन कप इज कैलिब्रेटेड टू मेजर टीस्पून्स, टेबलस्पून्स एंड आउंस. कैलिब्रेशंस मींस, व्हाट डू यू मीन बाय कैलिब्रेशंस? कैलिब्रेशंस का मतलब क्या होता है? उस पर ऐसे मार्क्स किए गए होंगे. द मार्क्स आर कॉल्ड एज कैलिब्रेशंस. तो जो कप्स होता है उस पर कैलिब्रेशंस बनाए गए होते हैं. टू मेजर टीस्पून. टीस्पून मींस दिस इज 5 ml, 15 ml, 30 ml. so there are 3 calibrations. और वो कैलिब्रेशंस टीस्पून, टेबलस्पून और आउंस डिसाइड करती है. अगर डॉक्टर ने टीस्पून बोला है तो आप सिर्फ 5 ml तक ही भरोगे वो कप. अगर डॉक्टर ने टेबल स्पून बोला है तो आप 15 ml तक वो कप भरोगे, और डॉक्टर ने 1 आउंस बोला है तो आप 30 ml तक उसको फिल करोगे. तो इट इज इन कैलिब्रेटेड फॉर्म, उस पर मार्किंग्स दिए गए होते हैं. टू pour accurately, place the medicine cup on an eye level, on an surface at eye level, and then pour the liquid while reading the measuring markings. Yes. जब भी आपको एक्यूरेटली पोर करनी हो मेडिसिन, मतलब वो जो बॉटल है उसमें से एक्यूरेटली कप में निकालनी हो, सो कप को आपको ऐसे नीचे या बहुत ऊपर नहीं रखना है. यू हैव टू प्लेस द कप एट योर आई लेवल एंड देन यू हैव टू पोर द मेडिकेशंस. और आपको जितनी भी निकालनी है उसके जो मार्किंग्स है, जो कैलिब्रेशंस है, वहां पर देख के मेडिकेशंस जितनी आपको चाहिए उतनी निकालनी है. बट यू हैव टू कीप द कप एट द आई लेवल. जैसे थर्मोमीटर में भी एट द आई लेवल आप रख के देखते हो ना कितना टेम्परेचर था, वैसे भी इसमें भी एट द आई लेवल आपको रखना है. Volume of less than 5 ml are measured using a syringe with a needle remove. अगर समटाइम्स आपने देखा होगा कि बहुत कम अमाउंट देना है, 5 ml से भी कम देना है, सो उतना आप कैसे मेजर करोगे? वो मेजर करने के लिए जब भी 5 ml से कम मेजरमेंट देना हो, कम mls में देना हो, तो उसको आपको सीरिंज से मेजर करना होगा. और उसमें भी नीडल निकाल देनी होगी, बिकॉज अगर नीडल के साथ मेजरमेंट करोगे सो उतना एक्स्ट्रा चला जाएगा. जो नीडल में है उतना तो एक्स्ट्रा जाएगा. So remove the needle and measure the syrup. अगर ऐसा बोला हो कि 2.8 ml देना है, so 2.8 ml डायरेक्टली आप कप में कैसे पोर करोगे एक्यूरेटली? So take a syringe of 3 ml और उसमें 2.8 ml तक मेडिसिन फिल कर दो एंड देन यू कैन गिव द पेशेंट. आप वो कप में एम्प्टी करके पेशेंट को भी दे सकते हो और डायरेक्टली भी दे सकते हो. Next, the red point, that is very important point. A calibrated syringe is used for giving medication to children. जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कैलिब्रेटेड सिरिंज यूज होती है, बिकॉज उनके डोजेस बहुत छोटे छोटे कम डोजेस होते हैं. सो आप एक्यूरेटली वो नहीं निकाल पाते हो. सो उनके लिए वो कैलिब्रेटेड सिरिंज. कैलिब्रेटेड मीन्स अगेन व्हाट? सिरिंज के ऊपर Marking. मार्किंग्स होंगे. यस. So there must be calibrations on the syringe. So calibrated syringe use होती है for the children to give them small dosage of medication. Okay, so let's take a short break of 10 minutes. Then we will start parenteral medication. हमने oral पढ़ लिया, oral tablet और liquid form में था, measuring cup पढ़ लिया. Now parenteral medications हम पढ़ेंगे after break. So let's take a short break.
Friends, please come back from break. Should we start now? Yes, sir. Okay, so let's start. Parenteral medication. Parenteral medication means, what do you mean by parenteral medications or parenteral route? IV through RPA. IV. IV. Yes. Other than oral routes are called as parenteral routes, जो हम penetrations करते हैं through IV, IM, subcutaneous, all this called as parenteral routes. So parenteral means an injection route, and parenteral medications are administered by IV, that is intravenous, intramuscular, subcutaneous or intradermal. You can see in the figure 14.1, आपको इसमें दिख रहा होगा 14.1 में there are different types of skin layers. हमें पता है जो superficial layer है that is called as epidermis. This is called as dermis. हमने जो skin में पढ़ा था, when we have studied the anatomy of the skin, so we know that this is the dermis. We know that this is epidermis, this is dermis, this is subcutaneous tissue, and this is muscles. So it is mentioned here कि जो epidermis और dermis combinedly है, it is called as skin. So intradermal हमेशा superficial layer में ही दिया जाता है, और इट इंडिकेट्स, जब भी आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन दो और पेशेंट को ब्लैब हो, लाइक मॉस्किटो बाइट करते हैं तो कैसी सूजन हो जाती है, अगर वैसा होता है देन इट इंडिकेट्स कि आपने मेडिकेशन अच्छे से दी है. अगर वो ब्लैब नहीं फॉर्मेशन होता देन इट इंडिकेट्स कि आपने मेडिसिन अच्छे से नहीं दी है. ब्लैब फॉर्मेशन इज नेसेसरी व्हेन यू आर गिविंग इंट्राडर्मल इंजेक्शन. अगर वो होता है देन एंड देन ओनली इट इंडिकेट्स कि आपने अच्छे से दी है. देन IM इंजेक्शंस डायरेक्टली मसल्स में दिए जाते हैं. सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सबक्यूटेनियस टिश्यू तक दिए जाते हैं, और यू कैन गिव इट एट 45 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल. अगर छोटी नीडल होगी तो डायरेक्टली 90 डिग्री पर दे सकते हो. अगर बड़ी नीडल है, नीडल की लेंथ ज्यादा है, तो आप 90 डिग्री पर नहीं दे सकते. अगर नीडल की लेंथ ज्यादा है और आप 90 डिग्री पर दे दोगे तो इट विल गो इनटू द मसल्स, बट वी वांट टू गिव इट इन अ सबक्यूटेनियस टिश्यू. सो उसको आपको कंपल्सरीली 45 डिग्री एंगल्स पर ही देना होगा जब नीडल की लेंथ ज्यादा हो, और नीडल की लेंथ कम हो तो आप 90 डिग्री एंगल पर दे सकते हो. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो नो. और इंट्राडर्मल ऑलवेज 5 to 15 डिग्री एंगल्स पर ही आप दे सकते हो, तो अभी वो सुपरफिशियल लेयर में इंजेक्ट होगी. सो यू कैन सी different types of angles in this figure. Parenteral medications are packed in a single use ampules, in a single and multiple use rubber stopper vials, and in pre-measured syringe and cartridge. आपको पता होगा कि जो parenteral medications है लाइक IV, IM, subcu, intradermal, ID, वो सारी मेडिकेशंस किसमें फील्ड होती है? सो सिंगल यूज एम्प्यूल्स. एम्प्यूल्स को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो. नो, एक बार तोड़ी सारी ड्रग्स मेडिकेशन निकाली, देन वी हैव टू डिस्कार्ड दैट एम्प्टी एम्प्यूल. वी कैन नॉट प्लेस द ओपन एम्प्यूल. हम वो ओपन करके रख नहीं सकते. एक ही बार सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं. और मल्टीपल और सिंगल टाइम रबर स्टॉपर वायल्स. आपको पता होगा कि वायल के ऊपर रबर स्टॉपर्स होते हैं, वो रबर का कैप होता है जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर सकते हो. बिकॉज आप सीरिंज नीडल अंदर डाल के जितनी डिजायर्ड ड्रग है उतनी आधी, फॉर एग्जांपल आधी वायर ले ली, सो आधी आप रख सकते हो बिकॉज इट इज ऊपर रबर का है. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो सराउंडिंग एनवायरमेंट में है वो वायर के अंदर नहीं जा पाएंगे बिकॉज इट इज क्लोज. सिर्फ हम नीडल डालेंगे तभी वो ओपन होता है. तो वो मल्टीपल टाइम्स भी यूज हो सकता है और सिंगल टाइम भी यूज हो सकते हैं. तो उसमें भी आती है मेडिकेशन. और प्री मेजर्ड सिरिंजेस भी आती है. आपने देखा होगा कि जो एनोक्सापैरिन है, वैसे सब इंजेक्शन है वो ऑलरेडी प्री फिल्ड ही होते हैं, आपको डायरेक्टली इंजेक्ट ही करने होते हैं. सो प्री मेजर्ड सिरिंज और कार्ट्रिजेस में भी आते हैं वो मेडिकेशन. The standard 3 ml syringe is used to measure most injectable medication and is calibrated in 0.1 of a milliliter in tens. जो स्टैंडर्ड सिरिंज है, जब भी कोई छोटे अमाउंट में देना होता है कोई भी मेडिकेशन, तो स्टैंडर्ड 3 ml की सिरिंज हम ज्यादा यूज करते हैं मेडिकेशन देने के लिए. और वो कैलिब्रेटेड है, मतलब उस पर मार्किंग्स किए गए हैं इन टेंस ऑफ मिलीलीटर. सो इट इज लाइक दिस 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. देन बड़ी लाइन आएगी दैट इज 0.5. देन अगेन स्मॉल स्मॉल लाइन्स होगी, देन इट इज 1 ml. फिर ऐसे छोटे 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 छोटे, फिर बड़ी, देन इट इज
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, then 1.5, फिर 1.6, 7, 8, 9 और 10 that is 2 ml. So ऐसे 10 टर्म्स में कैलिब्रेशन होता है उसका. 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 0, 1, 2 and 3 ml होगा. So between 0 to 1 वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8. So ऐसे कैलिब्रेशंस दिए गए होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम. 0.1 के फॉर्म में दिए गए होते हैं. अंडरस्टूड? Yes. Okay. The syringe is filled by drawing in solution until the top ring of a plunger, that is the ring closest to the needle, not the middle section or bottom section of the ring of the plunger, is aligned with a desired calibration. You can see in the figure. हमें पता है what is the plunger. Plunger क्या होता है? Plunger means સિરિંજમાં પાછળ પ્લન્જર હોય છે ને જેનાથી આપણે ડ્રો કરીએ પુલ આઉટ કરીએ. यस, जो हम ऐसे पुल आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लंजर. सो आपको बोला है कि 2.8 ml मेडिकेशंस फिल करनी है, तो आप कैसे फिल करोगे? तो जो प्लंजर होता है, यू नो दिस इज द सिरिंज लाइक दिस, और ये प्लंजर होगा. प्लंजर इतना मोटा होता है और यहाँ से ऐसे होल्ड करना होता है. सो आपको ये साइड देखनी है, जो कैलिब्रेशन के सबसे नजदीक है वो उस तक मेजरमेंट लेना है, ना कि मिडल पोर्शन, ना कि बॉटम पोर्शन. ये अगर 2.8 ml तक आता है तो उतने तक भरना है. अगर ये 2.8 यहाँ पर 2.8 ml है तो डोंट फिल दैट मच. जो आगे का पोर्शन है, जो प्लंजर का आगे का पोर्शन है, वो अगर हमारी जो डिजायर्ड यूनिट तक पहुंच जाए उतना हमें फिल करना है. प्लंजर का बीच वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन हमें कंसीडर नहीं करना है. यू कैन सी इन द फिगर, लेट मी शो यू. यू कैन सी दिस इज द प्लंजर. सो हमें क्या देखना है? जो प्लंजर का आगे का पोर्शन है, यहाँ पर कैलिब्रेशन है, तो ये जितना होगा, ये जो इंडिकेट कर रहा होगा हमारी मेडिसिन उतनी होगी, ना कि ये. और ये जो बीच वाला है वो कंसीडर नहीं करना, हमें आगे वाला कंसीडर करना है. अंडरस्टूड? रीड फ्रॉम दिस पॉइंट, इट इज मेंशन कि यहाँ से रीड करना है, नॉट फ्रॉम इन बिटवीन और लास्ट टिप. दिस आर द लेबल्स. जो आगे का है दैट इज टिप और हब. जो सिरिंज है दैट इज कॉल्ड एज बैरल. द आगे जो प्लंजर होता है उसमें आगे रबर स्टॉपर होता है. This is very important point. The nurse would not administer more than 3 ml per IM injection site, 2 ml for deltoid, or 0.5 to 1.5 ml for subcutaneous. This is so important. ये चीज आपको याद रखनी है. आप IM इंजेक्शन जो भी मसल्स में आप देते हो वो 0.3 ml से ज्यादा आप नहीं दे सकते. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपका आंसर आया है IM के लिए 4 ml, देन यू मस्ट नो कि ये कुछ रॉन्ग है. मसल्स में 3 ml से ज्यादा मेडिकेशन आप नहीं दे सकते. और उसमें भी अगर डेल्टॉइड मसल्स यूज कर रहे हो, डेल्टॉइड मसल्स कहाँ पर होते हैं? ऑन द हिप. No. Yes, at the shoulders. Yes, जो shoulders sides जो मसल्स होते हैं वो डेल्टॉइड मसल्स है. तो डेल्टॉइड मसल्स में तो 2 ml से ज्यादा आप नहीं दे सकते. 3 ml कब कहाँ पर दे सकते हो? ग्लूटियस मसल्स. ग्लूटियस मसल्स कहाँ पर होंगे? ग्लूटियल मसल्स ऑन द हिप्स. हिप्स में भी आप IM इंजेक्शंस देते हो. देयर आर डिफरेंट साइट्स ऑफ IM इंजेक्शंस, तो वहां पर आप 3 ml दे सकते हो, बट नो मोर देन 3 ml. और डेल्टॉइड यूज कर रहे हो तो डेल्टॉइड में से 2 ml से ज्यादा आप इंजेक्शन नहीं दे सकते. और यू आर गिविंग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना हो तो 0.5 to 1.5 ml ही देना है. 1.5 ml से ज्यादा आप नहीं दे सकते. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज याद रखनी है. I have made it in a red mark because this is so important. आपको वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे. अगर गलती से डॉक्टर ने बोल दिया है कि give 3.5 ml IM, so will you give it to the patient? No. No, we know that 3 ml से ज्यादा हम नहीं दे सकते. So you have to ask the PHCP that you have made a mistake. आपने कुछ गलती कर दी है. 2.5 की जगह 3.5 लिखा है या 3 से ज्यादा है. So I cannot administer or this prescription. So आपको PHCP को inform करना होगा. The nurse would not administer more than 3 ml per IM injection site
or 2 ml for the deltoid specifically, or 0.5 to 1.5 ml for an adult per subcutaneous injection site. Larger volumes are difficult for an injection site to absorb and if prescribed need to be verified. अगर हम उससे ज्यादा दे देंगे, अगर IM में 3 ml से ज्यादा दे देंगे तो वो मेडिसिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, बिकॉज इट इज so much for the muscles to absorb this larger amount of medication, so वो properly absorb ही नहीं हो पाएगी. Still if it is prescribed by the doctor, we have to verify it कि आपने ऐसा क्यों लिखा है. Variations for pediatric clients are discussed in pediatric sections of this text. जो pediatric sections है, जो pediatrician है उसमें दिखाया गया है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था फार्मिकोलॉजी में कि इससे ज्यादा हम pediatrics को नहीं दे सकते. So you have to remember all these things. For an average size adult, a 25 gauge 5 to 8 inch needle at 45-degree angle or half-inch needle at 90-degree angle is used for subcutaneous injection. We know कि अगर सबक्यूटेनियस में हमें 90 डिग्री पर देना है एंगल, तो जो नीडल है उसकी साइज छोटी होगी, और अगर हम 45 डिग्री एंगल पर दे रहे हैं तो उसकी बड़ी साइज भी चलेगी, बट नीडल का गेज 25 गेज ही लेना है. आप बड़े गेज वाली नीडल डाल सकते हो, उसका डायमीटर बड़ा होगा, सो आप डाल सकते हो. अगर इट इज 16 गेज नीडल तो आप यूज कर सकते हो. 16 गेज की नीडल होगी तो कैन यू यूज इट फॉर सबक्यूटेनियस और IM इंजेक्शन? नो. जितना गेज छोटा होगा उसकी साइज उतनी बड़ी होगी. yes, उसका डायमीटर बड़ा होगा. So for IM and subcutaneous injection always go for the larger gauge, that is small diameter. बहुत ज्यादा बड़ा डायमीटर हो वैसी नीडल्स नहीं सिलेक्ट करनी है. सो एवरेज, जो भी एवरेज साइज एडल्ट होता है, जो मीडियम बॉडी वाला होता है, उसके लिए 25 गेज की नीडल और लेंथ कितनी होगी 5 to 8 इंचेस होगी. तो अगर ऐसी नीडल है तो 45 डिग्री पर दोगे. अगर वो कम है, उसकी लेंथ नीडल की छोटी है, हाफ इंचेस है, तो हम 90 डिग्रीज पर दे सकते हैं. आपने देखा होगा नीडल्स की अलग अलग साइज आती है, तो छोटी होती है, और सबक्यूटेनियस देना है तो डायरेक्ट आप 90 डिग्री पर दे सकते हैं. फॉर एन IM इंजेक्शन इन एन एडल्ट क्लाइंट, द client's weight, site for injection and amount of adipose tissue influences the needle size. जब भी हम IM इंजेक्शन देते हैं तो क्लाइंट का वेट कितना है, कौन सी साइड यूज कर रहे हो, लाइक ग्लूटियल की डेल्टोइड, कौन से मसल्स यूज कर रहे हो, क्लाइंट का एडिपोज टिश्यू कितना है, वो सब मैटर करता है टू सिलेक्ट द नीडल साइज. अगर शायद वो ओबेस हो, an obese person may require a needle 2 to 3 inches long, whereas a thin person requires half to 1 inches small needle. अगर पेशेंट ज्यादा ओबेस हो और आपको उसको IM इंजेक्शन देना है, पर उसके ऊपर सबक्यूटेनियस फैट ही उतना ज्यादा है कि छोटी नीडल मसल्स तक पहुंच ही नहीं पाएगी. सो ऐसे पर्सन के लिए आपको जो नॉर्मल लेंथ है 5 to 8 इंचेस, उससे 2 to 3 इंच लॉन्ग नीडल लेनी होगी, उससे थोड़ी बड़ी नीडल होनी होगी. अगर पेशेंट बहुत ही थीन है सो उसके लिए हाफ इंच और 1 इंच कम साइज की लेनी होगी हमें नीडल. अंडरस्टूड? यस और नो? Got my point or not? Should I repeat it? Repeat करूं एक बार? No, ma'am. Okay. Then the gauge of the needle will depend on the viscosity of the solutions being injected. Viscosity means what? What do you mean by viscosity? थिकनेस मतलब ट्रांसफर થવાની જે मतलब कैपेसिटी હોય એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ. Okay, so if tell me किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, वाटर की या हनी की? हनी की. क्यों? ठीक बिकॉज है. वो बहुत ही थिक है. यस. सो आप नीडल का गेज, नीडल की साइज कैसे सिलेक्ट करोगे? डिपेंडिंग ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि जो आप जब मेडिकेशंस डाइल्यूट करते हो पाउडर फॉर्म वाली, तो सम आर थिक
थोड़ी थिक होती है और सम मेडिकेशंस आर वेरी वाटरी. सो डिपेंडिंग ऑन द विस्कोसिटी आप नीडल की साइज सिलेक्ट करोगे. आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप ऐसी जो मेडिकेशंस होती है जो बहुत ही कॉमनली पिप्टाज मेडिकेशंस होती है, जो पिपेरासिलिन और टेजोबेक्टम का कॉम्बिनेशन होता है पिप्टाज मेडिकेशन, वो अगर आप छोटी डायमीटर वाली नीडल से करते हो तो आप इजीली विड्रॉ कर पाते हो वो मेडिकेशन सिरिंज में. नो. नो, उसके लिए हम बड़े डायमीटर वाली लेते हैं तो इजीली आ सके. सो सिमिलरली नीडल की साइज, नीडल का गेज आप कैसे डिसाइड करोगे? डिपेंडिंग ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो आपको इंजेक्ट करना है. विथ अ लार्जर गेज नीडेड फॉर मोर विस्कस सॉल्यूशन, जो लार्जर गेज होगा मतलब जिसका डायमीटर बड़ा हो, ऐसी नीडल कैसे, जो ज्यादा विस्कस सॉल्यूशन है उसके लिए ऐसी नीडल लगेगी. If a Z-track method is used, a larger, deeper muscle such as ventrogluteal muscle would be chosen at a site. अगर आप नॉर्मली नहीं दे रहे हो, दो मेथड से दी जाती है. एक तो नॉर्मल जो हम आईएम इंजेक्शंस देते हैं, डायरेक्टली ऐसे दे देंगे, दैट इज नॉर्मल. जेड ट्रैक मींस व्हाट? आप ऐसे ऐसे बम्प करके इंजेक्शंस देते हो. डू नो व्हाट इज दैट? आप ऐसे जब भी आपने देखा होगा तो ऐसे आप पकड़ते हो मसल्स, फिर आईएम इंजेक्शंस देते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज जेड ट्रैक मेथड. जेड ट्रैक मेथड मींस ये नॉर्मल ये मसल से अगर मैं डायरेक्टली दे दूंगी तो सिरिंज यहाँ पर जाके इंजेक्शन दे देगी, जो नीडल है वो यहाँ पर इंजेक्शन दे देगी. अगर मैं ऐसे बम्प क्रिएट करती हूँ, मैं स्किन को ऐसे मूव करती हूँ, देन मैं सिरिंज डालती हूँ, ऐसे नीडल अंदर डालूंगी तो यहाँ पर मेडिकेशन रिलीज होगी. और जैसे ही मैं छोड़ दूंगी, सो कैसा होगा, उसमें छोड़ने के बाद ऐसे मूव हो जाएगी स्किन, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ये स्किन पर. मूव होने के बाद ये रिलीज हो जाएगा तो जेड ट्रैक मेथड होगी. ऐसे स्किन रिलीज होने के बाद सीरीन जो होल क्रिएट हुआ था, जो लाइन क्रिएट हुई थी, वो अलग हो जाएगी. सो जेड ट्रैक मेथड यूज करने का बेनिफिट क्या है? सो ब्लीडिंग कम होगा, बिकॉज दोनों पंचर, ऊपर यहाँ पर पंचर था, अंदर यहाँ पर पंचर था, बिकॉज ये अब स्ट्रेट हो गया है, सो इजिली वो ब्लड बाहर नहीं आएगा. तो दैट इज कॉल्ड एज जेड ट्रैक मेथड. अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पता चला व्हाट इज जेड ट्रैक मेथड? Yes, ma'am. सिंपली जब ऐसे आप होल्ड करके मेडिसिन देते हो और जब उसको रिलीज करते हो, तो जो पंचर क्रिएट हुआ था वो स्ट्रेट नहीं होगा, दैट वुड बी जिगजैग. वो जिगजैग हो जाएगा क्योंकि स्किन आपने रिलीज कर दी, पहले बम क्रिएट करके आपने इंसर्ट किया, देन आपने रिलीज कर दी, तो जो पंचर होना चाहिए वो जिगजैग हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज जेड ट्रैक मेथड. और जब आप नॉर्मली करते हो तो दैट इज सिंपल मेथड. सो जब भी आप जेड ट्रैक मेथड यूज करो, सो ऑलवेज डीपर जो मसल्स होते हैं वो यूज करो, सच एज वेंट्रोग्लूटियल मसल्स. जो हिप्स पर होते हैं वो मसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, दैट इज मोर मस्क्यूलर, सो वो मसल्स यूज करो इंस्टेड ऑफ डेल्टॉइड. दे आर सिंपली सेइंग यू दिस. गॉट माय पॉइंट? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Okay, students are not interested or any other issues? Okay, next is for an intradermal injection, a tuberculin or a small syringe is used. The angle of insertion for an intradermal injection is 5 to 15 degree. आपने देखा होगा इंट्राडर्मल इंजेक्शन देने के लिए ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज और ऐसे स्मॉल सिरिंजेस आती है. जब आपने हॉस्पिटल सेटिंग्स में ऐसे देखा होगा तो शायद आपको पता होगा, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज जैसे ब्राउन कलर की सिरिंज आती है. सो दैट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द इंट्राडर्मल इंजेक्शंस. और वैसे स्मॉल सिरिंजेस आप यूज कर सकते हो. मेक श्योर जब भी आपको इंट्राडर्मल इंजेक्शन देना हो तो आप 5 to 15 डिग्री, मतलब नॉर्मली ऐसे स्ट्रेट ही होगा, थोड़ा ही एंगल ऐसे टिल्टेड होगा, 5 to 15 डिग्री एंगल पर आप मेडिसिन दे सकते हो फॉर इंट्राडर्मल. The important red point is always question and verify excessively large or small volumes of the medication. Yes, जब भी बहुत ज्यादा हो, लाइक सबक्यूटेनियस के लिए हमें पता है 0.5 to 1.5 हो, तो बहुत स्मॉल हो, 0.5 से कम मेडिकेशन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तब भी आपको क्वेश्चन करना होगा कि व्हाई दिस इज सो स्मॉल. और 1.5 से ज्यादा हो तब भी आपको क्वेश्चन करना होगा कि व्हाई दिस इज सो मच लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिकेशन. अंडरस्टूड? जब भी कम या ज्यादा हो, एक्सेसिवली स्मॉल और लार्ज वॉल्यूम्स हो मेडिकेशन के, तब आपको विथहोल्ड करना है, पहले क्वेश्चन करना है पीएससीपी को. अंडरस्टूड?
about parenteral medication? Yes. Okay. Next is Yes. pre-filled medication cartridge. Pre-filled medication cartridge you can see in this image. Cartridge means ऐसी like वायल जैसा बना होता है जो प्री-फिल्ड होता है. डायरेक्टली आपके जो स्टॉपर है आगे का वो ओपन करके, ये स्टॉपर ओपन करके डायरेक्टली आईवी पुश दे सकते हो. आपको नीडल की और किसी की जरूरत नहीं है. देयर आर डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स. इसमें स्टॉपर है, समटाइम्स नीडल होगी. सो अलग अलग फॉर्म्स में होता है, बट दिस आर ऑलरेडी प्री फिल्ड. उसमें पहले से मेडिकेशंस भरी हुई है. देयर इज नो एनी एम्प्यूल और वायल जिसमें से आपको निकालनी हो, वो ऑलरेडी पहले से ही भरी हुई है. सो दैट इज कॉल्ड एज प्री फिल्ड मेडिकेशन कार्ट्रिज. द मेडिकेशन कार्ट्रिज स्लिप्स इनटू द कार्ट्रिज होल्डर which provides a plunger for injection of the medications. ये सिंपली एक कार्ट्रिज है, पर उसमें एडिशनल क्या है, एक प्लंजर दिया गया है आपको. तो डायरेक्टली आप ऐसे आईवी जो इंजेक्शन साइट हो उसमें डायरेक्टली ऐसे फिट करके डायरेक्टली आप मेडिकेशंस दे सको. The cartridge is designed to provide sufficient space to allow for the addition of a second medication when combined dosages are prescribed. ये जो कार्ट्रिज होता है, ये जो हमने देखा, उसको ऐसे बनाया गया है कि ऐसा नहीं कि जितनी मेडिकेशन है उतना ही फील होगा. थोड़ी उसमें एक्स्ट्रा स्पेस दी जाती है. अगर आपको कोई मेडिकेशन मिक्स करनी हो तो अगर एक्स्ट्रा स्पेस होगी तभी आप मिक्स कर पाओगे. सो दे विल प्रोवाइड यू द एडिशनल स्पेस और सफिशिएंट स्पेस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर डोजेजेस और मेडिकेशन जब भी आपको प्रिस्क्राइब करे तो. The pre-filled medication cartridge is to be used once and discarded. If a nurse is to give less than the full single dose provided, the nurse needs to discard the extra amount before giving the client injection in accordance with agency policy and procedure. ये जो pre-filled cartridge होती है वो single time use वाली होती है. एक बार use करके फिर discard कर देना है. You cannot keep it aside. अगर फॉर एग्जाम्पल प्रीफिड कार्टिलेज 5 ml की है और डॉक्टर ने बोला है कि आपको सिर्फ 2.8 ml ही देना है. सो यू कैन नॉट कीप रिमेनिंग 2.5 बोला है. सो यू कैन नॉट कीप द रिमेनिंग 2.5 ml फॉर नेक्स्ट यूजेज. एक बार आपको यूज करके फेंक ही देनी है. समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको सिंगल थोड़ा ही डोज बोला होगा, जस्ट लाइक दिस. तो आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग 2.5 ml है वो आप पहले डिस्कार्ड करोगे, फिर पेशेंट को दोगे. यू कैन नॉट डू लाइक कि 5 ml है तो लाओ मैं पहले 2.5 दे देती हूँ पेशेंट को, फिर सारा डिस्कार्ड कर दूंगी. ऐसे नहीं करना है. पहले डिस्कार्ड करना है, देन रिमेनिंग 2.5 ml आपको पेशेंट को देना है. गॉट माई पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग, पर आपको याद रखना है कि अगर ऐसे प्री फिल्ड सिरिंज और कार्ट्रिज हो और मुझे हाफ डोज देना है तो पहला स्टेप क्या होगा? Half Half dose discard. discard कर दें. यस, फर्स्ट डिस्कार्ड द रिमेनिंग पोर्शन. जो आपको नहीं देना है वो रिमेनिंग पोर्शन पहले डिस्कार्ड करो, देन पेशेंट को दो. डू नॉट प्रैक्टिस लाइक दिस कि मैं 2.5 पहले पेशेंट को दे दूंगी फिर रिमेनिंग पूरा डिस्कार्ड कर दूंगी. दैट इज द रॉन्ग थिंग. सो एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस वो लोग ज्यादा पूछेंगे. In general, standard medication doses for adult who are to be rounded for the nearest tenth of 0.1 ml or of a milliliter and measured on a milliliter scale. For example, 1.2 ml is rounded to 1.3 ml. Follow the agency policy. Yes. अगर मतलब in general हम जब भी ऐसे नियर बाय वैल्यूज आती है 1.2 ml 1.28 ml आंसर आया, तो हम उसको राउंड अप करके, बिकॉज उसमें हम 1.2 ml कैसे मेजर कर पाएंगे. सम्स सॉल्व करने के लिए आप लिख सकते हो, बट जब प्रैक्टिकली आपको देना होता है तो यू हैव टू राउंड इट अप. सो 1.28 को आप 1.3 में राउंड अप करके दे सकते हो. अंडरस्टूड? Yes. Yes. Okay. When volumes are larger than 3 ml, when volumes larger than 3 ml are required, the nurse may use 5 ml syringes. These syringes are calibrated in fifth, that is 0.2 ml. जब आपको 3 ml से ज्यादा मेडिसिन देनी हो तो अब आपको बड़ी सिरिंज यूज करनी होगी, दैट इज 5 ml सिरिंज, और उसमें 0.2 ml पर ऐसे कैलिब्रेशन होंगे, जस्ट लाइक दिस. तो ऐसा होगा, इफ इट इज 0 then 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1 ml. फिर
1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2 ml. सो 2 के डिफरेंसेस पर हो गए. 3 ml में 0.1 के कैलिब्रेशन से और 5 ml की सिरिंज में ऐसे कैलिब्रेशन होंगे. अंडरस्टूड? यू कैन सी हियर, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ तो दिस इज 0.1, 0.4, 0.6, 0.8, देन 1 ml, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 ml, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3 ml. अंडरस्टूड? Yes. सो जब 5 ml की होगी तो उसमें 0.2 ml के डिस्टेंस पर होगा कैलिब्रेशन. अदर syringes may be available like 10 ml, 20 ml, 50 ml and may be used for medication administration during requiring dilution. जो बड़ी syringes आती है 10 ml, 20 ml, 50 ml की, वो कब यूज होती है? जब आपको बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करना हो. थोड़ा कम डाइल्यूशन करना हो तो 10 ml यूज करोगे. ज्यादा डाइल्यूशन करना हो, इन्फ्यूजन थ्रू देना हो तो 20 ml, 50 ml syringes यूज होती है. दे आर अवेलेबल, उससे बड़ी नहीं आती. When performing a calculation, if rounding is necessary, perform the rounding at the end of the calculation. When taking the NCLEX, follow the instructions provided in the question regarding the need of roundup. For example, the NCLEX question may read, record your answer using 1 decimal point. जो हमने पहले डिस्कस किया था वो. जब भी आप कैलकुलेशंस करते हो सम्स की, तो राउंडिंग अप कब करना है? लास्ट में करना है. बीच में अगर आप सॉल्व करते हो तो पॉइंट में आंसर आता है तो उसको जैसा आया है वैसा ही रहने देना है. इन बिटवीन डोंट राउंड इट अप. लास्ट में राउंड अप करो. एंक्लेक्स में आपको ऑलवेज क्वेश्चन रीड करना है कि आपको किस कैसे आंसर उन लोगों ने मांगा है आपसे. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे हैव आस्क्ड यू फॉर द 1 डेसिमल प्लेस, तो आप ऐसे पॉइंट के बाद 1 नंबर लिखोगे. 2 डेसिमल प्लेस में होगा तो 2 नंबर्स रखोगे. 3 डेसिमल पॉइंट्स में मांगा होगा तो 3 पॉइंट्स रखोगे. होल नंबर होगा तो आपको राउंड अप करना होगा. 1 डेसिमल पॉइंट में भी आ रहा है 1.28, तो आपको बोला है कि राइट योर आंसर इन 1 डेसिमल पॉइंट, सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. सो कैसे आपको पूछा गया है, यू हैव टू रीड दैट इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड देन यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन. अंडरस्टूड? Yes. Okay. नेक्स्ट इज ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज, जो हमने ऑलरेडी बोला था. ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज मेनली कैसे यूज होती है, किसमें यूज होती है? और पीपीडी इंजेक्शन ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट मध्ये. हाँ, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, इंट्राडर्मल जो भी इंजेक्शन देना हो तो उसमें ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज यूज होती है. यू कैन सी इन दिस इमेज. ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज की कैपेसिटी कितनी होगी? ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज की कैपेसिटी कितनी होगी? 1 ओनली 1 ml. यस. सो उसमें जो कैलिब्रेशन होंगे वो बहुत छोटे होंगे बिकॉज टोटल वो 1 ml की ही होती है, उससे बड़ी नहीं आती. द ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज होल्ड्स 1 ml एंड इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल और क्रिटिकल अमाउंट्स ऑफ मेडिकेशन. बिकॉज उसके अंदर इतने छोटे 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 पॉइंट्स में कैलिब्रेशन होता है तो आप प्रिसाइसली, बहुत ही एक्यूरेटली मेडिकेशन मेजर कर पाओगे. सच एज एलर्जन एक्सट्रैक्ट, बिकॉज वो एलर्जी स्किन टेस्ट करने के लिए यूज होता है. सो एलर्जन एक्सट्रैक्ट, वैक्सीन और चाइल्ड्स मेडिकेशन, वो सब यूज करने के लिए आप ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज यूज कर सकते हो. द सिरिंज इज कैलिब्रेटेड इन हंड्रेड्स, दैट इज 0.01 ऑफ अ मिलीलीटर. सो कैसे होगा? पहले ऐसा होगा, यू कैन सी हियर, आप उसमें देख सकते हो. लेट मी शो यू. दिस इज 0.01, this is 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 6, 7, 8, 9 and then 0.1 आएगा. जब हमने 3 ml की सिरिंज देखी थी उसमें 0.1 से स्टार्ट होता था, पर इसमें 10th में 0.01, 0.02, फिर ऐसे 0.05 और लास्ट में 0.1 ml होगा. फिर क्या होगा इसमें? 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, then 0.16 ऐसे करके 0.2 ml होगा. लास्ट में 19 के बाद 0.20 होता है तो दैट इज 0.2 ml.
सिर्फ 0.21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे करके 0.3 ml होगा. सो लास्ट में 1 ml होगा. सो लास्ट में यू कैन सी कि इट इज 1 ml. सो वो 0.01 के टर्म्स में उसके ऊपर कैलिब्रेशन किए गए होते हैं. each 1/10 marked on a metric scale. So जो भी कैलिब्रेशन है छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे वो लिखे नहीं होते, जो बड़े होते हैं डायरेक्ट वो ही लिखे होते हैं. 0.1, 2, 3, 4 वैसे ही लिखे होते हैं. 3 ml सीरीज में डायरेक्ट 1, 2, 3 लिखे होते हैं. जो छोटे मार्किंग्स है वो सिर्फ कैलिब्रेशन होते हैं, उसमें लिखा नहीं गया होता, और ये मार्क किया गया होता है 0.1 ml, 2 ml. Understood about tuberculin syringe? Understood? Yes or no? Yes, Okay. ma'am. Next is Yes. इंसुलिन सिरिंज. इंसुलिन सिरिंज भी आपने देखी है. इंसुलिन सिरिंज दो फॉर्म्स में आती है, एक छोटी एक बड़ी. छोटी वाली की कैपेसिटी 50 यूनिट्स की होगी, और बड़ी जो आती है थोड़ी, उसकी कैपेसिटी 100 यूनिट्स की होती है. द स्टैंडर्ड 100 यूनिट इंसुलिन सीरीज इज कैलिब्रेटेड फॉर 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन. 100 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 ml. जो बड़ी सिरिंज आती है जिसमें 100 यूनिट्स लिखा गया हो, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 ml की कैपेसिटी होती है. Low dose insulin syringe such as 30 unit insulin syringe or 50 unit insulin syringe are available for more precise insulin draw for clients with low dose insulin prescription. 100 units वाली रेगुलर होती है, बट कोई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि जो बहुत ही कम इंसुलिन लेते हैं, सो उनके लिए लो डोज इंसुलिन सिरिंज होती है. उसकी पूरी कैपेसिटी 30 यूनिट्स की और 50 यूनिट्स की आती है. सो अब सोचो कि उसमें जो कैलिब्रेशंस होंगे वो कितने छोटे होंगे, कितने प्रिसाइज होंगे. सो आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो. द इंसुलिन वुड नॉट बी मेजर्ड इन एनी अदर टाइप ऑफ सिरिंज. अगर डॉक्टर ने बोला कि 6 यूनिट देना है, तो आपको इंसुलिन सिरिंज में ही मेजर करना है. यू कैन नॉट विड्रॉ 6 यूनिट्स लाइक 6 ml. कोई भी अदर टाइप्स ऑफ सिरिंज से आप नहीं निकाल सकते. यू हैव टू मेजर द इंसुलिन फ्रॉम इंसुलिन सिरिंज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर दिस पॉइंट. इससे क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में. If the insulin's prescription states to administer regular insulin and NPH insulin, combine both types of insulin in the same syringe. अगर आपको पेशेंट को बोला गया हो, डॉक्टर ने लिखा गया हो कि पेशेंट को 2 टाइप्स की इंसुलिन देना है, रेगुलर इंसुलिन एंड एनपीएच इंसुलिन, तो आप क्या करोगे? वो दोनों इंसुलिन एक ही सिरिंज में आप कंबाइन करके दे दोगे. सो यू हैव टू रिमेंबर द नेमोनिक, दैट इज RN. ये RN नेमोनिक आपको याद रखना है, जो हमारा ही है. So draw the regular insulin into the insulin syringe first and then draw the NPH insulin. So RN means पहले regular, आपके पास एक syringe है तो पहले आप regular insulin भरोगे syringe में और फिर NPH insulin भरोगे. So remember this mnemonic, that is RN. जब भी 2 इंसुलिन एक साथ प्रिस्क्राइब किए गए हो, रेगुलर एंड एनपीएच, तो दोनों एक ही सिरिंज में आपको भरने हैं. पहले कौन सा भरोगे आप? Regular. Regular one. And then which insulin you will fill? NP. NPH. NPH. So दोनों एक ही सिरिंज में भरना है, but remember this sequence. पहले आप NPH नहीं भर सकते, पहले आपको रेगुलर ही भरना है, फिर आप NPH भरोगे. So remember this mnemonic. Of note, with newer insulin types on the market such as long acting and rapid acting insulin, regular and NPH insulin are used less frequently because of safety and convenience factor. Yes, अभी मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन आ गए, जो हमने ऑलरेडी फार्मेकोलॉजी में स्टडी किए थे. कितने टाइप्स के इंसुलिन है टोटल? कितने टाइप्स के थे? 5. कि कौन से? Long, short, intermediate, rapid. Yes, rapid acting, short acting, intermediate acting and long acting. So these are the 4. types. Yes, so these are the types of insulins. तो मार्केट में नए इंसुलिन आ गए हैं, लॉन्ग एक्टिंग टाइप और रैपिड एक्टिंग टाइप, कि जिसकी वजह से ये रेगुलर और एनपीएच इंसुलिन बहुत ज्यादा यूज नहीं होते बिकॉज ऑफ सेफ्टी किस टर्म्स में? बिकॉज इससे हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा हो जाता है, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूजिंग दिस टाइप ऑफ इंसुलिन रेगुलरली. सो पर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस होंगे, सो आपको याद रखना है कि ऑलवेज
follow RN, regular first and then NPH. Remember this point. This is very important. इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे. Okay. अदर इंसुलिन डिलीवरी मेथड्स कौन सी? अदर आप कैसे इंसुलिन दे सकते हो? डिफरेंट मेथड्स कौन सी है? सो इंसुलिन पंप्स आर स्मॉल computerized devices that mimics the way the human pancreas work by delivering small doses of short acting insulin continuously according to the basal rate. ऐसे इंसुलिन पंप्स आते हैं. इंसुलिन पंप्स मतलब जो आपने पैचेस देखे कभी कोई डायबिटिक पेशेंट के स्किन पर ऐसे बिहाइंड द नेक और एब्डोमेन ऐसे पैचेस लगाए हुए होते हैं, ऐसा कोई पेशेंट देखा है? Yes. हाँ. सो दे आर कंप्यूटराइज्ड इंसुलिन पंप. वो रेगुलरली जस्ट लाइक पेनक्रियास, हमारा पेनक्रियास कैसे नेचुरली डिपेंडिंग ऑन द नीड बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंसुलिन रिलीज करता है, तो वो पैच भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा. डिपेंडिंग ऑन द नीड वो ऑटोमेटिकली इंसुलिन रिलीज करेगा. वो कंप्यूटर डिवाइस है, वो आपको बॉडी का ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करके उसको रेगुलरली स्मॉल डोजेस वो डिलीवर करता रहेगा, जस्ट लाइक ह्यूमन पेनक्रियास. For many people with diabetes, insulin pens are a more convenient and portable options than vials and syringes. They can also make insulin delivery easier for anyone with arthritis or other dexterity issues. Yes. एक तो जो सिरिंज से हम पेशेंट को देते हैं, एक वो मेथड है. दूसरी मेथड है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स जो पैचेस होते हैं वो. और तीसरी मेथड क्या है कि जो डायबिटीज वाले पीपल होते हैं वो पेन यूज करते हैं, बिकॉज उनके लिए बहुत इजी है, उसमें मेजर करना है फिर डायरेक्ट पुश कर देना है, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दे आर वेरी कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल बिकॉज उसमें वायल और सिरिंजेस की किसी की भी जरूरत नहीं है, सिंपली जस्ट एडमिनिस्टर थ्रू दैट पेन. वो बहुत ही इजी है. जिसको आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस मीन्स व्हाट डू मीन बाय आर्थराइटिस? Joint. इन्फ्लेमेशन ऑफ द Inflammation of the जॉइंट्स. joint. यस. सो वो इजीली अपने जॉइंट्स मूव नहीं कर पाते, तो इसके लिए उनके लिए पेन बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगी. और उनको कोई डेक्सेट्री इश्यू होगा. व्हाट इज डेक्सेट्री? Sugar. डेक्सेट्री, सॉरी, Sugar. डेक्सेटिलिटी इश्यू मीन्स उनको जो मोबिलिटी होनी चाहिए, लाइक आई कैन होल्ड दिस पेन वेरी परफेक्टली. और जो ओल्डर पीपल्स हो गया उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है, जो फाइन मोटर होता है उनका डैमेज हो जाता है, तो वो प्रॉपरली सारी चीज होल्ड नहीं कर पाते. सो उसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट है वो इम्पेयर हो गई है, उनको डेक्सेटिलिटी इश्यूज है, तो वो पेन यूज करेंगे तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट कंपेयर टू द सिरिंज एडमिनिस्ट्रेशन. सिरिंज से ऐसे विड्रॉ करके एडमिनिस्टर करने में उनको दिक्कत होगी. सो पेन वुड बी कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल फॉर देम. सी चैप्टर 48 फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन. जो एंडोक्राइन वाला चैप्टर था हमने इंसुलिन का उसमें स्टडी कर लिया था, फार्मेकोलॉजी पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया था. Next is safety needles. Last type is safety needles, contains shielding devices that are attached to the needle and slipped over the needle to reduce the incidence of needle stick injuries. Engaging the safety feature of the needle would occur immediately after the administration of medication. Yes, अभी मार्केट में ऐसी सेफ्टी नीडल्स आती है. सेफ्टी नीडल्स पे क्या होगा, उसके ऊपर एक शील्ड होगा. आपने जो फ्लेबोटॉमिस्ट होते हैं, जो लैब वाले कलेक्शन करने आते हैं, उनके पास ऐसी नीडल्स बहुत ज्यादा होती है. सो दे आर सेफ. जैसे ही आप नीडल ब्लड विड्रॉ कर दोगे और वो स्लिप हो जाएगा, आप जैसे ही थोड़ा हाथ मारोगे तो वो स्लिप होके नीडल को कवर कर लेगा. सो इट रिड्यूसेस द नीडल स्टिक इंजरीज. ऐसी नीडल्स यूज करने से जो नीडल स्टिक इंजरीज होती है वो बहुत कम हो जाती है. आपको इमेज दिख रहा होगा, आपने देखा होगा कि ऐसी नीडल्स बहुत कॉमनली फ्लेबोटोमिस्ट ज्यादा यूज करते हैं. देखिए आपने ऐसी काइंड ऑफ नीडल्स. Yes, Have you ma'am. ever seen such kind of needles? Yes. So these are the safety needles. Okay. Last topic, that is injectable medications in a powder form. So अब जब भी आपने देखा होगा कि वायल्स में पाउडर फॉर्म में होता है, तो आप कैसे पाउडर फॉर्म कैसे दोगे? कैन यू डायरेक्टली एडमिनिस्टर द पाउडर इनटू वेन्स और IM? No. नो, वी हैव टू चेंज देयर स्ट्रक्चर. वो पाउडर फॉर्म में है, सो हम पाउडर फॉर्म में नहीं दे सकते. वी हैव टू मेक इट इन अ लिक्विड फॉर्म. सो जब भी हम किसी एक पाउडर फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करें, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज करें, दैट इज कॉल्ड एज
reconstitution of the medication. The word for that is reconstitution. Reconstitution का मतलब क्या होता है? We are changing the nature. पाउडर फॉर्म में से हम लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं, that is reconstitution. So some medications become unstable when stored in a solution form and are therefore packaged in a powder form. अगर medications होती है जो वो लिक्विड फॉर्म में होगी तो बहुत ही डैमेज हो जाएगी, सो इसीलिए उनको पाउडर फॉर्म में दिया जाता है. जब भी नीड हो, जब भी एडमिनिस्टर करना हो, तभी हम उसको डाइल्यूट करेंगे और देंगे. आप कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो करना, कभी भी पाउडर वाली जो वायल होती है उसको डाइल्यूट करके रख देना थोड़े घंटे के लिए. दे विल चेंज देयर कलर, बिकॉज वो जो नॉर्मल स्टेबल स्टेट है उसमें रह नहीं सकते. तो दैट्स वाई उनको वो डैमेज ना हो जाए, एक्सपायर ना हो जाए, इसीलिए उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है कि जब भी रिक्वायरमेंट हो तभी आप उसको उसका रिकंस्टिट्यूशन करके आप एडमिनिस्टर कर सको. पाउडर्स मस्ट बी डिसॉल्व्ड विथ अ स्टेराइल डाइल्यूएंट बिफोर यूज. Usually sterile water or normal saline is used. The dissolving procedure is called as reconstitution. जो पाउडर्स होते हैं उसको आप कैसे पाउडर फॉर्म को लिक्विड में कैसे करोगे? सो देयर मस्ट बी अ स्टेराइल डाइल्यूएंट. डाइल्यूएंट मींस जिससे आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, तो वो स्टेराइल होना चाहिए. नॉर्मली वो स्टेराइल वाटर भी होता है और एनएस भी होता है. जो वायल्स होते हैं उसके साथ प्री पैकेज ही आता है. नॉर्मल सलाइन भी होगा और स्टेराइल वाटर भी होगा. मेक श्योर कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है कि जिसमें आपको स्ट्रिक्टली स्टेराइल वाटर यूज करना होता है और कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जिसमें आपको स्ट्रिक्टली नॉर्मल सलाइन यूज करना होता है. देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स. जब भी आप डाइल्यूशन करो तो जो उसके साथ दिया गया है वो रीड करो. समटाइम्स हॉस्पिटल में कैसा होता है कि वो जो मेडिकेशन होती है उसके साथ स्टेराइल वाटर दिया जाता है, पर नर्सिस क्या करती है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट स्टेराइल वाटर वो एनएस की बॉटल में से विड्रॉ करके डाइल्यूट कर देती थी. दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस. अगर उसमें स्टेराइल वाटर दिया गया है सो इट शुड बी डाइल्यूटेड विथ स्टेराइल वाटर, नॉट विथ एनएस. अंडरस्टूड? Yes, sir. आपने देखा होगा कि पेशेंट को पाइंट में डाइल्यूट करके देना होता है 1 लीटर और 500 ml का. सो वो ही सॉल्यूशन यूज करके हम मेडिसिन डाइल्यूट कर देते हैं. दैट इज द रॉन्ग थिंग. अगर उसमें जो डाइल्यूएंट है वो एनएस है तो आप वो कर सकते हो, पर डाइल्यूएंट स्टेराइल वाटर है तब आप एनएस यूज नहीं कर सकते. आपको स्टेराइल वाटर ही यूज करना होगा. और जो हमने वो डिसॉल्विंग प्रोसीजर किया, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड एज रिकंस्टिट्यूशन. Let's see box 14.7. What is reconstitution? In reconstituting a medication, locate the instructions on the label or in the vial package, insert and read and follow the directions carefully. जब भी आप reconstitution कर रहे हो किसी भी medications का, तो उसके ऊपर instructions लिखी गई होती है. वो instructions आपको read करनी है carefully कि dilute करने के बाद ऐसे shake करो, थोड़ी देर रहने दो. जो भी instructions होगी, we have to read that carefully. Instructions will state the volume of diluent to be used and the resulting volume of the reconstituted medication. वो सारी जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें क्या लिखा होगा कि कितना आपको डाइल्यूएंट यूज करना है, 5 ml 10 ml कितना डाइल्यूएंट आपको यूज करना है. और लास्ट में फॉर एग्जांपल ये वायल है, उसमें इतना पाउडर है, दिस इज पाउडर, और उसमें बोला है कि 10 ml आपको डाइल्यूएंट यूज करना है. सो 10 ml यूज करने के बाद जो उसका कैपेसिटी, जो उसका टोटल वॉल्यूम होगा वो ज्यादा हो जाएगा. सो वो भी उसमें लिखा होगा कि कितना वॉल्यूम होगा. लास्ट में रिकंस्टिट्यूटेड मेडिकेशन का वॉल्यूम कितना होगा. Often the powder medication adds volume to the solution in addition to the amount of diluent added. ऐसा नहीं है कि पाउडर में आप 10 ml डाइल्यूएंट डालोगे तो टोटल मेडिकेशन 10 ml की होगी. इट इज नॉट लाइक दैट. बिकॉज ऑफ द पाउडर वो 10 ml से ऑलवेज ज्यादा ही होगी. 10 ml डायरेक्टली 10 ml नहीं होगी. The total volume of the prepared solution will exceed the volume of the diluent added. जो मैंने बोला कि जो total volume बनेगा after reconstitution, so वो जो आपने diluent add किया उससे ज्यादा ही होगा always. When reconstituting a multiple dose vial, label the medication vial and date and time of preparation, your initials and the date of expiration. Yes, जब आप कुछ ऐसी मेडिसिन को reconstitution करते हो, multiple dose vial. Multiple dose vial means, what do you mean by multiple dose vial? You are not using that vial for a single time.
आपने एक बार डाइल्यूट कर दिया, फिर 2-3 बार आपको वो ही सेम वायल यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल डोज वायल। सो अगर आप ऐसे वायल्स को रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हो तो आपको ऊपर लेबल करना होगा कि आपने कब, डेट एंड टाइम, कितने बजे आपने रिकंस्टिट्यूशन किया, कितने बजे ये वायल प्रिपेयर किया, और उसकी एक एक्सपिरेशन टाइम होता है कि आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको डेट ऑफ एक्सपिरेशन भी उस पर लेबल करना होगा, सो आपको पता चले कि हाँ अब ये एक्सपायर हो गए, नाउ आई हैव टू डिस्कार्ड दिस वायल दो इट इज मल्टीपल डोज वायल, मुझे नया ही बनाना होगा। सो मेक श्योर कि जब भी मल्टीपल डोज वायल को आप रिकंस्टिट्यूटिंग कर रहे हो तो उस पर लेबल प्रॉपरली करो। इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथ पर वॉल्यूम ऑफ द ऑन द मेडिकेशन लेबल ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट। यस, पाउडर फॉर्म की वो स्ट्रेंथ नहीं लिखी जाएगी, जब भी आप डाइल्यूएंट उसमें ऐड करते हो और जो टोटल सॉल्यूशन बना उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, स्ट्रेंथ मींस 5 mg पर ml कितनी स्ट्रेंथ है, वो भी उस पर लिखा होगा लेबल पे, तो वो भी आपको रीड करना, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। अंडरस्टूड? Yes. ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ अवर टुडेज क्लास। आज हमने क्या देखा? So we have seen medication prescription. Medication prescription means जो भी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सो उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में? नेम ऑफ द क्लाइंट, डेट एंड टाइम, मेडिकेशन नेम, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, टाइम और सिग्नेचर, ये दैट इज मैंडेटरी, वो होना ही चाहिए। और जब भी कोई आपको डाउटफुल लगे कि कुछ रॉन्ग लगे, सो यू हैव टू कॉन्टेक्ट द पर्सन जिसने वो लिखा है प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, आपको उसको कॉन्टेक्ट करना है इमीडिएटली। देन वी हैव सीन ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन कितने फॉर्म्स में आती है? जो नॉर्मल टैबलेट्स आती है वो तो है, उससे अलावा स्कोर टैबलेट्स आती है। व्हाट इज दैट? स्कोर टैबलेट्स मींस मार्क करेलू है। so we can divide it in half, it is already pre-marked। जब भी ऐसे मेडिकेशंस हो कि जो हाफ करने की नीड ज्यादा हो तो उस पर ऑलरेडी स्कोर टैबलेट्स बोलेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स? एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स और कैप्सूल्स में क्या डिफरेंस है? એન્ટ્રી કોટેડ હોય એ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય અને કેપ્સ્યુલ હોય એને આપણે ખોલીને બી આપી શકીએ Each and every Entry tablet or coated હોય medicine delay gets absorb. absorbed. Yes. Entry So coated હોય એનું enteric coated, absorption delay થાય જ્યાં સુધી small intestine માં ના જાય ત્યાં સુધી. yes, enteric coated tablets है, उसका absorption delayed हो जाएगा, वो स्टमक में ही डिजोल्व होके एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी, बिकॉज इट इज कोटेड और वो इंटेस्टाइन में जाकर ही एब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंटेरिक कोटेड। और कैप्सूल मतलब એ પાવડર ફોર્મમાં હોય એ ડાયરેક્ટ जो हम ऐसे ओपन આપણે कर હોલ सकते हैं, કેપ્સ્યુલ લઈ શકે. यस, जो ट्रांसपेरेंट, उसमें एक जिलेटिन कवर होता है, सो उसके अंदर पाउडर होगा, ऑयली मेडिकेशन होगी, वो सब होगा। सो आप ऐसे भी दे सकते हो ओपन करके और होल कैप्सूल भी दे सकते हो। कैन यू क्रश द एंटेरिक कोटेड मेडिसिन? नो. નો नो, वी कैन नॉट क्रश। अगर क्रश कर देंगे तो वो स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, and it is meant to be absorbed in the small intestine, that's why it is made like a enteric coated, so we cannot crush the enteric coated medications। okay, फिर अदर लिक्विड फॉर्म में आते हैं। सो लिक्विड डायरेक्टली जो भी सॉल्यूशंस हो, कितना सॉल्यूशन, डोजेज क्या है, वो लिखा होता है। नेक्स्ट वी हैव सीन मेडिसिन कप। मेडिसिन कप की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी? 30 ml. 30 30 ml, यस। उसमें मार्किंग किए गए होते हैं 5 ml, 15 ml, 30 ml, दैट इज टीस्पून, टेबलस्पून और आउंस। सो डिपेंडिंग ऑन आवर नीड हम उतना ही मेडिसिन निकालेंगे। वी हैव टू कीप दैट कप एट द आई लेवल, आई लेवल पर रख के ही निकालनी है। अगर 5 ml से कम वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे? સિરિંજ वी विल यूज द કેલિબ્રેટેડ syringe। સિરિંજ यस, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी चिल्ड्रन को मेडिसिन देनी होती है, बिकॉज उनको प्रिसाइज डोज देना होता है, ज्यादा नहीं दे सकते हम। तो उनके लिए अगर स्मॉल डोजेस है तो कैलिब्रेटेड सीरिंज ही यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हमने पेरेंटल मेडिकेशन देखी थी। कौन सी पेरेंटल मेडिकेशन है? જો પેટ્રેટ કઈ ના પી શકાય VIM સબ ક્યુ ઇન્ટ્રાડર્મલ. Yes, so I intravenous, intramuscular, subcutaneous and intradermal all are these are parenteral medications। इंट्राडर्मल 5 to 15 एंगल पर देंगे इन द बिलो द एपिडर्मिस। देन IM है वो ऑलवेज 90 डिग्री पर ही देंगे, और सबक्यूटेनियस 2 एंगल्स पर दे सकते हैं, वन इज 90 एंड वन इज 45। व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट?
નીડલ નાની હોય તો 90 ડિગ્રી આપવાની, મોટી હોય તો 45. Yes, if the needle is shorter in size, तो हम 90 डिग्री पर दे सकते हैं. If the needle is long in size, we have to compulsorily give at the 45 degree angle. So this is the thing. What is the important red point about the maximum dose for IM and subcutaneous? IM में किससे ज्यादा हम नहीं दे सकते? 3 ml. 3 ml. Yes, we cannot administer more than 3 ml in intramuscular site. और specifically deltoid में 2 ml. not more than 2 ml. 2 ml से ज्यादा हम नहीं दे सकते. What about subcutaneous? What about subcutaneous? 0.5 to 1.5. 0.5 to 1. Yes, we cannot give less than 0.5 and more than 1.5 in a subcutaneous tissue. So depending on the patient's average build कितना है, हम needle की size select करते हैं. अगर patient ज्यादा obese होगा और उसको IM इंजेक्शन देना होगा तो needle की लेंथ कितनी रखेंगे? लंबी रखेंगे. पेशेंट बहुत ही थीन है तो नीडल की लेंथ कैसे रखेंगे? Short. शॉर्ट रखेंगे. इफ यू आर यूजिंग जेड ट्रैक मेथड, तो जेड ट्रैक मेथड कौन से मसल्स पे यूज करोगे आप? जो मसल्स डीप हो, जहां पर मसल मास ज्यादा हो, वैसे मसल्स लाइक Ventrogluteus. वेंट्रोग्ल्यूटियल मसल्स है, वहां पर मसल्स बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप जेड ट्रैक मेथड बहुत इजीली एक्यूरेटली यूज कर सकते हो कंपेयर टू डेल्टोइड मसल्स. देन जब भी व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी स्मॉल, वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज डोज हो तो यू हैव टू क्वेश्चन द पीएचसीपी. देन वी हैव सीन प्री-फिल्ड मेडिकेशन कार्ट्रिज. व्हाट इज दैट? सो वो ऑलरेडी प्री-फिल्ड होता है, सो यू कैन डायरेक्टली एडमिनिस्टर इट. अगर वो सिंगल टाइम यूज होता है, यू कैन नॉट यूज दैट मल्टीपल टाइम्स. अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि आपको पूरा नहीं देना, हाफ ही देना है, सो व्हाट यू विल डू? प्री-फिल्ड First मेडिकेशन discard, then first remain dose given. yes, we have to first discard the unnecessary medications. जो डॉक्टर ने बोला है उसके सिवाय जो रह गया है उसके अंदर, वो पहले डिस्कार्ड करना है, बाद में आपको पेशेंट में इंसर्ट करना है. डू नॉट डू लाइक दिस कि पहले इंसर्ट कर दिया, जो डॉक्टर ने बोला था 2.5 ml वो इंसर्ट कर दिया और रिमेनिंग 2.5 ml डिस्कार्ड कर दिया. डोंट डू लाइक दैट. फर्स्ट डिस्कार्ड देन एडमिनिस्टर. सो रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स. जब भी 3 ml से ज्यादा हमें एडमिनिस्टर करना हो पेशेंट में तो 5 ml सिरिंज यूज करेंगे. What is the red important point? Rounding up. राउंडिंग अप कब करोगे आप? जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो राउंडिंग अप कब करोगे? यू विल डू द राउंड अप एट द लास्ट. लास्ट में राउंडिंग अप करना है. बीच में 1.29 आंसर आए तो भी उसको 1.29 ही रहने दो. डोंट राइट लाइक 1.3, उससे आंसर चेंज हो जाएगा. सो डू द राउंडिंग अप एट द लास्ट, एट द एंड, और रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि उन लोगों ने कैसे आंसर आपसे मांगा है. whether it is in whole number, whether it is in 1 decimal point, 2 decimal point, 3 decimal point, कैसे उन लोगों ने पूछा है. So read that very carefully. Then we have seen tuberculin syringe. Tuberculin syringe की कैपेसिटी क्या होती है? 1 ml. 1 ml. जो छोटी चीजें हमें एडमिनिस्टर करनी है, लाइक एलर्जेंस एडमिनिस्टर करने हैं, वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी है, चाइल्ड के लिए मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है, तब हम ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज यूज करते हैं. और उसमें कैलिब्रेशंस कितने होंगे? 0.01 से स्टार्ट होते हैं. सो टोटल 1 ml होगा और बीच में जो कैलिब्रेशंस होते हैं वो 0.01 से स्टार्ट होते हैं. दैट इज हंड्रेड्स ऑफ द मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर को डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.01 आंसर आएगा और उसमें दिए जाते हैं. इंसुलिन सिरिंज. इंसुलिन सिरिंज कितने फॉर्म्स में होती है? 2. 100 यूनिट, 30 यूनिट एंड 50 यूनिट. यस, 100 यूनिट की होगी तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 ml. 1 ml. 30 यूनिट और 50 यूनिट कब यूज होती है? जब आपको बहुत ही कम इंसुलिन देना हो, तो उसमें प्रीसाइसली, बिकॉज उसमें भी ज्यादा कैलिब्रेशन होंगे, सो आप प्रीसाइसली विड्रॉ कर सकते हो और प्रीसाइसली कम डोज इंसुलिन दे सकते हो. व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रेगुलर एंड एनपीएच इंसुलिन?
What is that grade point? કમ્બાઈન આપવાનું રેગ્યુલર ને NPH, તો પહેલા રેગ્યુલર ફિલ કરવાનું, then NPH ફિલ કરવાનું. Yes. Follow the mnemonic RN, that is ourself only. हमें खुद को फॉलो करना है. जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया हो कि रेगुलर और एनपीएच दोनों कंबाइन करना है, सो डू नॉट टेक टू डिफरेंट सिरिंजेस. एक रेगुलर एक सिरिंज में एनपीएच, डोंट डू लाइक दैट. यू हैव टू मिक्स बोथ इंसुलिन इन अ सिंगल सिरिंज. पर कौन से स्टेप पहले फॉलो करना है? पहले रेगुलर इंसुलिन आप सिरिंज में फिल करोगे, देन एनपीएच इंसुलिन सिरिंज में फिल करोगे, सिरिंज शेक करके पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दोगे. सो रिमेंबर दिस mnemonic. दूसरी कौन सी मेथड से इंसुलिन डिलीवरी की? एक तो इंसुलिन पंप्स आते हैं जो पैचेस लगाते हैं वो. दूसरा पेन आता है. पेन बहुत ही कन्वीनियंट और पोर्टेबल है. देन अदर पेरेंट्रल रूट्स के लिए सेफ्टी नीडल्स आती है. सेफ्टी नीडल्स कैसी होती है? उस पर एक कवर होता है, शील्डिंग डिवाइस होता है कि जब भी आप विड्रॉ कर दो ब्लड, तो थोड़ा भी आप ऐसे उसको टच करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा और नीडल स्टिक की इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं. तो जितना हो सके उतना सेफ्टी नीडल्स यूज करो. देन इंजेक्टेबल मेडिकेशन इन पाउडर फॉर्म. कई बार ऐसी मेडिकेशंस होती है जो लिक्विड फॉर्म में स्टेबल नहीं रहती इन द नॉर्मल एनवायरनमेंट. सो उसके लिए उसकी वजह से उसको पाउडर फॉर्म में रखते हैं. जब भी आपको जरूरत हो तभी उसको डाइल्यूट करना चाहिए. यू कैन नॉट डू लाइक दैट कि आफ्टरनून में आपको पिप्टाज मेडिकेशंस देनी है और पेंटोप्राजोल मेडिकेशंस देनी है तो आपने मॉर्निंग से ही डाइल्यूट कर दिया. डोंट डू लाइक दैट. आपको पाउडर फॉर्म में इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो जो लिक्विड फॉर्म में है उसमें स्टेबल नहीं रह सकती. इट इज अनस्टेबल when it is stored in a liquid form, so that's why it is already given in powder form. Or always use sterile water or NS as instructed. अगर उसमें बोला हो कि you have to dilute with the use of sterile water, you cannot use the normal saline. So read that label, किससे dilute करना है, क्या लिखा है वो आपको read करना चाहिए. Then you have to do the dilution. जो डाइल्यूशन प्रोसेस करते हो, पाउडर में से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, इट इज कॉल्ड एज रिकंस्टिट्यूशन. यस, रिकंस्टिट्यूशन. अगर आपको कोई एग्जाम में ऐसा वर्ड लिखा जाए कि रिकंस्टिट्यूशन, तो आपको क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि दे आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ पाउडर फॉर्म मेडिकेशन टू द लिक्विड फॉर्म. उसका नेचर चेंज करने की बात हो रही है. सो दैट इज कॉल्ड एज रिकंस्टिट्यूशन. सो रिकंस्टिट्यूशन करते वक्त आपको अगर कोई वायल ऐसा है, मल्टीपल डोज वायल कि मल्टीपल टाइम्स यूज करना है, तो उसके ऊपर डेट एंड टाइम लिखना होगा कि इतने बजे आपने उसका नेचर चेंज किया था और रिकंस्टिट्यूट किया था और कितने टाइम पर वो कब एक्सपायर होगी वो भी आपको लिखना होगा. फिर जब भी आप रिकंस्टिट्यूशन करते हो तो आपको पता ही है पाउडर में आप 10 ml लिक्विड डालोगे, सो मेडिसिन 10 ml की नहीं बनेगी, उससे ज्यादा ही बनेगी. ऑलवेज इट वुड बी लिटिल बिट मोर. आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपने 10 ml वाटर डाला था, अब जब आपने विड्रॉ किया so it is 10.5 or 11 ml withdraw हुई. So it is always more than the capacity of diluent. Diluent से ज्यादा ही बनेगी. Understood? Yes. Yes. Okay. Any doubt in today's topic? No. Okay. So tomorrow is 15th of February and tomorrow you are having a test for 2 days. The link will open for 2 days and you can give test according to your convenience. The test is time bound, so try to give in a single go. You cannot do like that कि अभी अपने टेस्ट करने बैठे फिर 5 मिनट पानी पीने गए, वॉशरूम गए, so your time will run. So try to give it a single go. एक ही बार बैठ के टेस्ट देने का अटेम्प्ट करना, ट्राई करना. और इस बार आपको कोई भी 10 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी. पहले टेस्ट में कैसा था कि मैं 10 मिनट्स एक्स्ट्रा देती थी. सो इस बार 85 क्वेश्चंस है, सो यू विल ओनली गेट 170 मिनट. आपको 180 मिनट्स नहीं मिलेंगे. 170 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होगा. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.